Very good afternoon to all of you. Friends, we have our guest speaker, very energetic, very young, very knowledgeable, resourceful, CA Pramod Jain ji. Welcome, sir. We have our one of the youngest chairman of institute, ex-chairman NIRC, Sasank Agarwal ji. Welcome, Sasank ji. Friends, सबसे पहले तो हमारे स्टडी सर्कल आप सबकी तरफ से प्रमोद जैन जी को फिर से सीसीएम में इलेक्ट होने के लिए बहुत बहुत बधाई है। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। आज का जो टॉपिक हमारा है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट है एंड फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स वी वर ट्राइंग टू हैव प्रमोद जी एट आवर वेबिनार बट ड्यू टू सम पॉजिटिव ऑफ टाइम हमारे को चांस मिल नहीं पा रहा था, बट हम बड़े आभारी हैं इनके इस बार इवन बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी प्रमोद जी ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। इवन आज भी प्रमोद जी इज नॉट इन दिल्ली और वो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, तो हम आपके आभारी हैं सर काफी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप उसको फाइनलाइज कैसे करेंगे बैलेंस शीट को, व्हाट ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एरिया, रिलेवेंट थिंग्स यू नीड टू कंसीडर। प्रोग्राम की शुरुआत करने के पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर एक्स चेयरमैन एनआईआरसी सीए शशांक अग्रवाल जी टू say a few words about today's program, about institute and about Pramod ji as well. Over to you, Sasank ji. Thank you, Sandeep ji, the convener of East Delhi Study Circle, and a warm welcome to Pramod Jain sir, our honorable Central Council member, and as well as a friend of so many professionals, I can say, and a helper in the time of need. If I talk about, first of all, I really like to welcome all the participants here who are here and listening to Pramod Jain sir about finalization of balance sheet, because I always feel this topic is very relevant on today's date, because today is 29 January. So I can say you only have 2 months left, and there are so many things people don't even understand about their businesses. Sometimes people forget to deduct the TDS. Like, it is one of the few aspects I'm just discussing. And on 30th September of next year, when the auditor says that you forgot to even take a TAN number, at that time, literally the SSE has no things left in their hands, and they have to basically deduct the 30% as an expenditure, and so many issues, because I recently faced this issue for one of my clients, and I really cannot help the client. And I always told them, please come early. If you're coming at this date, on the auditing date, so like nothing is in my hand right now. Otherwise, you can deposit the tax with the interest and all those things you can do. So, and about Pramod Jain sir, and I can say his entire team, because I am me and my firm and my wife's firm and so many firms are taking the continuous help from Pramod Jain sir expert panel. And truly, in a one day, his entire team is actually replying. And entire team is all of us. It's none other than like Pramod Jain sir and all the chartered accountants who are actually contributing to helping other chartered accountants. And I'm literally a fan of your services, Pramod Jain sir. And like my entire firm, my dad and my father-in-law, everyone is fan of your services. And please keep continuing your generous contribution towards all of us. And again, a warm welcome to this auspicious seminar of East Delhi Study Circle. And again, many congratulations for becoming the Central Council member of ICI. Please, sir. Pramod sir. Thank you very much, Shashank bhai. CA Shashank Agarwal ji, my past and my chairman, because sir, आप हमारे chairman ही है ना sir, मैं तो member हूँ आपका.
ever smiling, very helpful, and always a pleasure to meet, because so much positivity you have when you meet, when you talk, when you smile. Really, be like that. That's really great. Great. संदीप शर्मा जी एंड ऑल डियर फ्रेंड्स, सबको पहले तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, because because unless you all had not supported me, I would have not been able to come back to the council to represent you. So it is just because of sheer love and your support and vote that I am back in the council, and I'll really assure that I'll leave no stone unturned to see that we all are represented well before the various stakeholders. Though the representation thought process could be different among our few members, few friends, and what I feel so, or what Shashank feels so, or Sandeep Bhai feels so. So it could be a various difference of views also, but whatever is good for the profession at large and the members at large, that I assure you that I am taking, and any point which you feel so that is good for the nation, good for the profession, kindly tell me on one-to-one basis also. I'll surely take that, whether through the whatever relevant I'm whether that in that committee or of the institute or not, because institute works through various committees. So I may not be a member of that committee, but we have got friends in each and every committee. So we can just refer that matter to that committee, and that committee will take it forward to the relevant stakeholders. So koi bhi point ho, kabhi bhi ho, binna jhijak ke you can call me. Before I go further and talk about the finalization of the balance sheets, morely in respect of companies and proprietorship partnership, also we'll talk a bit. अगर किसी का कोई issue है, तो पहले हम वो ले सकते हैं. Then we'll go on the presentation. Of course, during the presentation also, what I'll speak, what I'll share on my presentation, उससे related कुछ है, तो आप फिर दोबारा you can put that in the chat box as to ask a question. But अभी initially आपका कोई भी question किसी तरह का भी है, for initially 1 or 2 minutes or 5 minutes, whatever the chairman allows, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज बी वेरी फ्रैंक टू आस्क. ये क्योंकि हमारा ना इस दिल स्ट्रेस का हमारा बिल्कुल क्लोजली निट ही है सारा, तो हम सब घर में ही हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर. राकेश बोपा जी का क्वेश्चन है, as per 196 of the income tax act, no TDS is to be deducted on any sum payable to government. My question is, do we have to deduct under 194 on the payment to HSIDC again purchase of industrial plot? There have been few judgments for and against both, because what is government is the only question. Is HSIDC a government? So there have been a certain judgments earlier which said that no, it is not a government, but one or judgment which says that it is a judgment. So it is still a controversy. So better deduct if the HSIDC is very convenient. So always try and deduct that, right? सर ट्रस्ट के अंदर पता नहीं क्वेश्चन रेलिवेंट है या नहीं, बट ट्रस्ट के अंदर क्या मेरे ट्रस्टी चेंज हो सकते हैं? सब कुछ हो सकता है, whatever the trust deed says. Okay. So because these types of questions, Shashank bhai, comes a lot of times about the trust or trustee, नया add करना है, हटाना है, whatever it may be. So the only thing out here is as per the trust deed. And then you can refer to the Indian Trust Act 1882. Okay. But what is given in your trust deed, what would be the board of trustee, how new would be inducted, how the old would go, or if the trustee expires, then what happens, minimum limit, maximum limit, everything is in the trust deed. Okay. Right. And we cannot amend the trust deed time to time? We can. Again, the amendment would be there, but you cannot amend the objects, because for amending the objects, the founder has to do it. Trust का basic concept होता है कि शशांक ने संदीप जी को in trust to do this thing has given certain property. Correct. So that, and to do like this. So that can rest all, that can change. But for changing that, the founder trustee, the settler, he has to amend it. He has to amend it. Okay. ठीक है.
Any other question or issue? I think professionals always have so many questions. So I again request on everyone. टेक्निकल please हो, ask your question. टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कोई इशू नहीं, कोई चले, सब चलेंगे यहाँ पे. मन में बात कर सकते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सर यूडिन का क्या करना है? This is one of the question from the some members कि यूडिन के केस में like they are not able to sign now. So आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे मेंबर्स को. देखो फ्रेंड्स, चलो मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा. एक छोटा सा क्वेश्चन. हम लोग अभी इलेक्शन से गुजरे. इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस. आई एम टेलिंग यू व्हाई ब्यूटीफुल प्रोसेस. दिस बिकॉज ऑफ दिस elections we go and meet, otherwise we would have not gone and met. तो हमको सबके व्यूज ही नहीं पता लगते. तो एक मेरा ये क्वेश्चन है कि सब काफी लोग कहते थे हमको अपनी पुरानी गरिमा वापस लेके आनी. The old glory, we should increase our value. तो ये increase of value, what do we mean by that? पुरानी गरिमा मतलब पहले क्या होता था जो अब नहीं होता. My question is this. हम पुरानी गरिमा किस चीज के लिए कहते हैं? What do we want? It is an adjective, पुरानी गरिमा. If we want to bring it to noun, what? Anyone can talk about that. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप. ये जवाब अपने आप में एक जवाब है. नहीं, अगर देखो शशांक भाई, कई लोग कहते थे पहले सीए की वैल्यू होती थी, जैसे हम कहते थे वैसे क्लाइंट करता था, जैसे हम गवर्नमेंट को बोलते थे वैसे गवर्नमेंट करते. आज के डेट में ऐसे नहीं होता. राइट. तो अगर हम ये सोचे कि ये किसने करनी है, तो काउंसिल को करना है. भाई क्लाइंट को हम मेंबर्स खुद पर्सनली डील करते हैं. अब जो यूडिन की भी बात कर रहे हैं, ये एक्सटेंशंस की भी बात करते हैं, क्लाइंट के हमारे हिसाब से आते हैं? नहीं आते ना. और हम मेंबर्स ही उनकी एक्सटेंशन मांग रहे हैं. हम मेंबर्स ही कह रहे हैं यूडिन की डेट एक्सटेंड कर. तो फिर एक तरफ कहते हैं पुरानी गरिमा आएगी कैसे जब तक मैं उसका पार्ट नहीं बनूंगा. ईच एंड एवरी पर्सन. अगर हम चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से, हमारे आईक्यू में, हमारे नॉलेज में कहीं कोई कमी नहीं है, तो ओनली थिंग इज वी हैव टू रियलाइज दैट. वी हैव टू जस्ट रियलाइज दैट प्रैक्टिकली. और इसमें मैं ये मानता हूं किसी का कोई दोष नहीं है. कोई दोष नहीं है. उसका रीजन ये है कि 70 साल से हम, जो हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, जो हमारे पिताजी को जो हमारे प्रिंसिपल ने हमको सिखाया, हमारे प्रिंसिपल को उनके प्रिंसिपल ने सिखाया, वैसे ही चलता आ रहा है ना. We need to change. और हमको ये कहना चाहिए कि भाई आपको हमारे हिसाब से आना है. हम आपके हिसाब से काम क्वालिटी का करेंगे. अब अगर मान लीजिए वो क्लाइंट मेरा टाइम से आ गया होता तो मेरे हिसाब से आता ना. मैं ऑडिट करूंगा जब मेरे पास आप टाइम से आ जाओगे, मैं टाइम से करूंगा. आज मैं यूडिन की एक्सटेंशन किस लिए मार रहा हूं कि उसका मैं ऑडिट बैक डेट में कर दूं, क्योंकि वो टाइम से नहीं आया. फिर कैसी गरिमा? मैं तो उसके हिसाब से चल रहा हूं. लेट अस प्ले अवर रोल कि ना भाई तू टाइम से आ जा, मैं बैक डेट नहीं कर सकता. मेरी एक लिमिट है. सो वी हैव टू टॉक टू द क्लाइंट्स, स्टार्ट टॉकिंग टू द क्लाइंट्स कि भाई आप हमारे हिसाब से चलो. हम कोई एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, हमको कोई यूडिन नहीं चाहिए. पेनल्टी लगेगी, आपको लगेगी टाइम. मैं मानता हूं कि देयर इज अ थॉट प्रोसेस जो हमको वही हमारे सीनियर्स से मिला. टाइम लगेगा चेंज होने में. चेंज कीजिए. और एक और पॉइंट शशांक भाई, संदीप जी, और मेरे हिसाब से वो हमारे पूरे प्रोफेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बाकी सब चीजें साइड में, चाहे हम आज का सेशन कर लें, कुछ भी कर लें. मुझे ऐसा महसूस हुआ, कई सालों से हो रहा था, अब और भी स्ट्रांगली महसूस होता है कि हमारे पूरे प्रोफेशन को इम्प्रूव करने में जो एक चीज रोक रही है, only one thing, and that one thing is charging fee for the services which we are rendering. हम फी ही चार्ज नहीं करते. हमारे कई मेंबर ये सोचते नहीं, हम तो करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर फीस और हायर फीस.
That is the second thing. First thing is charging the fee for the services which we are rendering. अगर मान लीजिए हमारा क्लाइंट आता है, वो ये कहता है कि मेरे को म्युनिसिपैलिटी से कोई लेटर आया, कोई एक नोटिस आया, उसका लेटर का रिप्लाई बना दो, क्या उस रिप्लाई का बनाने का आप इनवॉइस चार्ज करते हैं? क्या 154, क्या 139.9, 143.1A आपका पूरे दिन का कितने की बिलिंग हुई? वो तो पुराने भाषा में कहते हैं गल्ला कितने का बना। क्या हमारा थॉट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग पे है? अगर हम अपना थॉट प्रोसेस चार्जिंग पे कर लेंगे, चार्जिंग एंड कलेक्टिंग, you will see there would be a huge change in the whole profession. अभी हम क्या करते हैं इस डर के मारे कि हम 100 रुपए का काम करते हैं, 20 रुपए चार्ज करते हैं, तो कहीं वो 20 रुपए ना चले जाएं, उस चक्कर में 80 रुपए भी चार्ज नहीं करते। सोचिएगा, सबको लगता है कि बहुत टफ है, क्लाइंट से कई लोग करते हैं चार्ज, कई लोग करते हैं, बट देखिएगा कि पूरे दिन में जितना काम हुआ उसका कितने की इनवॉइसिंग डेली हुई, बस इतना कर लीजिए एंड यू सी द डिफरेंस विद इन अ ईयर। my earnest request, thought process चालू करें। But I have, sorry to interrupt, I have seen some chartered accountant members also. They basically charge for 10 rupees per printout, and because we have lots of paper to print out, and one day I visited to one doctor for myself and shared my complete report in mobile. So what he said, please take the printout first, otherwise I'll not able to see you. And on the same time, I realized when some individual person come to me for the ITR filing, he just WhatsApp me all the figures, and I am actually printing out every document from my office computer and not even charging the amount for this. And I'm actually making the 100-page bulky file for him, because nowadays AIS, TIS, and TDS, three things you have to actually make the printout. So I think this is also the one of the thing which we have to add. शशांक भाई, वेरी वेरी राइट। यू नो, अभी हम जो डिस्कस भी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम कहेंगे यार शशांक जी, संदीप जी, प्रमोद जी क्या बात कर रहे हैं। जब अपने घर पे जाएंगे मंडे को, जब वापस काम करेंगे तब भूल जाएंगे। इट इज नॉट अ वन डे थिंग, आई फुल्ली अग्री एंड अप्रिशिएट, पर अपने थॉट प्रोसेस में कहीं जरूर रखिए कि मेरे को चार्ज करना है, मेरे दिन की आज की कितने की बिलिंग हुई, मैंने क्या टाइम लगाया, उस पर क्या बिलिंग है, क्या मेरे से कोई। आप देखिए, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस बिना चार्जिंग के नहीं चलता, चाहे डॉक्टर लो, एडवोकेट लो, ईच एंड एवरी सर्विस। आप रेस्टोरेंट में जाओ, दुकान में जाओ, आप गाड़ी हायर पे लो, 1 किलोमीटर भी फ्री नहीं कोई देता, सर हम ही देते हैं फ्री। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी ट्रू सर, कोई भी नहीं देता। तो थॉट प्रोसेस हमको अपना चेंज करना है, और इंडिविजुअल प्रैक्टिस मेरी मैं ही कर सकता हूं, मेरी प्रैक्टिस कोई और नहीं कर सकता। Some members are doing it fantastically, I'm telling you. We all अपने अपने लेवल पे जो कर सकते हैं कीजिए। मेरी ये अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप अपने सर्विसेज की खुद चार्ज कीजिए। आपकी सर्विसिंग की चार्जिंग कोई और नहीं करा सकता, मैं नहीं करा सकता, शशांक भाई नहीं करा सकते, संदीप भाई नहीं करा सकते, दुर्गादास जी नहीं करा सकते, कोई नहीं करा सकता। आपको अपनी प्रैक्टिस में खुद ही बिलिंग करनी है, खुद ही कलेक्शन करनी है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। sorry for taking that time, but yes, मुझे लगा। हाँ संदीप भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है संदीप जी। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो, कम आ रही है। अभी ठीक है? हाँ, हेलो, बोलो आप। हाँ सर, there are so many things which is going on, right? Whether it's a CA amendment or which regulatory एक बार रिकनेक्ट करो सर, एक बार रिकनेक्ट करो, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। संदीप भाई, क्या आप सीए अमेंडमेंट बिल या नफरा की बात कर रहे हैं? करेक्ट, यस सर, राइट। तो उसके बारे में इंस्टीट्यूट इज डूइंग, थोड़ा सा एज ए लीडर अगर आप बताएं। मैं बताता हूँ सर। हम आपको हर तरीके से सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रमोद सर देख रहे हो। नहीं, अच्छी बात है सर, और नहीं पूछोगे, मेरे से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे भाई? सही बात है, जब वो तो मेरे से पूरा पूछोगे ना, क्यों नहीं पूछोगे? आई एम आंसरेबल, व्हाई, जितना मुझे पता है पूरी फ्रैंकली शेयर कर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखो, पहले बात करें तू नफरा की। अगर हम जब नफरा की बात करते हैं तो पहले ये समझें कि नफरा है क्या।
नफरा एक इनकम कंपनीज एक्ट के सेक्शन से है, सेक्शन 135 से 132 से, एंड जहां पे वो कहता है कि जो सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए हैं, उसको इंस्टीट्यूट रिकमेंड करेगा नफरा को, नफरा करेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगा, और उसकी प्रॉपर कंप्लायंसेस हो रही है, उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नफरा की। लेकिन कौन सी कंपनीज की? जो कि मेरी लिस्टेड एंटिटी है, हाइट नेटवर्थ करती है 1000 करोड़ से ऊपर वाली, उससे नीचे की नफरा की सेक्शन के हिसाब से अथॉरिटी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। जब ये बात उठी चाहे वो जैसे मर्जी उठी, लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट, सोशल मीडिया में, सोशल सर्कल्स में हम लोगों ने, इलेक्शन के माहौल में ये सब होना वाजिब है, मैं किसी को कोई ये नहीं कहता कि बड़ा लॉजिकल है। तो ये जब उठी तो उन्होंने भी उसको किया, तो एक जो उनके चेयरमैन थे उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग की और एक अपना कंसल्टेशन पेपर निकाला। कंसल्टेशन पेपर जो कि उनकी अथॉरिटी नहीं थी, जो कि नफरा के बोर्ड से पास नहीं हुआ। जब इंस्टीट्यूट में हमको प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट सर ने बताया, दे टॉक टू द एमसीए दैट डू यू हैव एनी सच प्रपोजल, दे सेड नो, एंड देन प्रेसिडेंट सर ब्रॉट आउट अ वीडियो, एंड इफ my president, our president comes out with a statement openly in the press, in the video, that there is no such proposal, I should believe my president. And if I am not believing my president, then each and every person is running the whole institute themselves. अगर मैं अपने लीडर पे, जो जिसको प्रेसिडेंट बनाया है, उन्होंने डायरेक्टली बात की है एमसीए सेक्रेटरी से, तो इसलिए वो प्रपोजल अभी एक और आया कि भाई हम अलग उसको मॉडिफाई करेंगे, लेकिन वहां पर होगा तो कुछ उनकी बोर्ड से तो पास होगा। क्या उसकी अथॉरिटी है? उनकी कोई अथॉरिटी नहीं। एंड जहां पर भी उसको प्रॉपरली ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने किया, एमसीए ने, मतलब इंस्टीट्यूट ने एमसीए को किया। When we talk about this, why should I tell to NAFRA? Institute has written to the NAFRA and also to MCA very strongly. So there is no proposal as of now. अगर होता तो मुझे बताओ, आज तक कुछ हुआ क्या? अभी तक कुछ हुआ क्या? और एक बात देखो, मैं आप लोगों से एक बात और बोलूं, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मैं अपनी चार्जिंग चालू कर दूं प्रॉपर अपनी सब सर्विसेज की, और उस केस के अंदर अगर कोई भी ऑडिट खत्म होते हैं, तो आप ये सोचिए कि मेरा स्कोप कितना बढ़ जाएगा। मैं जिस ऑडिट की वजह से, जब चाहे वो 20-25 हजार की फीस है, 50 हजार की फीस है, उसकी वजह से मैं उसके बाकी काम नहीं कर पाता, और मेरे ऊपर सारे के सारे लेते हैं, ऑडिटर हो, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, आपको बुला लेते हैं, वो खत्म हो जाएगा। मैं उसके सारा काम कर सकता हूँ, अकाउंटिंग, एवरीथिंग आई कैन डू। And who will see their overall compliances of Companies Act, financial statements? इंडिया अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि गवर्नमेंट कैन रिलाई ऑन एन अनएडुकेटेड, नॉट टू मच एडुकेटेड businessmen to comply with the Companies Act. Please understand, if they do it, it would be huge opportunity for chartered accountants, but they won't be doing it. They won't be doing it because they want certain persons whom they can always call, okay, आपने चेक किया कि नहीं किया, वरना किसको बोलेंगे? बिजनेसमैन को। बिजनेस कहेगा मुझे थोड़ी पता कंपनी है, मुझे थोड़ी पता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये चीज हो नहीं सकती। अगर किया तो मतलब क्या समझ लो, हमारे लिए तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो ना गवर्नमेंट चाहेगी ना कोई चाहे। अब सीए अमेंडमेंट एक्ट, हमको पता ही नहीं उसमें इश्यू क्या है, हमारे को पता तो होना चाहिए उसमें इश्यू क्या है। और उसके अंदर इशू इनफैक्ट सिर्फ जो काउंसिल ने चेक किया और प्रेसिडेंट सर ने चेक किया, ओनली वन इशू जिसके ऊपर हम कंटेस्ट कर रहे हैं। और आप तारीफ, ये अब ये चीजें ना हम पब्लिकली नहीं बता सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट सर दे टेक सच कॉल्स, काउंसिल टेक्स अ कॉल। कितनी मेहनत किस चीज में, चाहे वो नफरा वाले इशू में कितनी मेहनत लगी, डेली की कॉलिंग, डेली की रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो सीए अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर कितना टाइम लग रहा है आपको नहीं पता। बिकॉज ये सीए अमेंडमेंट एक्ट जब जा रहा था, तो टू सेंड इट टू द स्टैंडिंग कमिटी, कितने मिनिस्टर्स से, कितने एमपी से, कितने ब्यूरोक्रेट से, हम लोग तो इलेक्शन में लगे थे, बट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ऑल कुछ काउंसिल मेंबर्स रेगुलरली फॉलो अप कर रहे थे कि इसको स्टैंडिंग कमिटी को रेफर किया जाए। स्टैंडिंग कमिटी को रेफर हो गया,
अब स्टैंडिंग कमेटी को रिप्रेजेंटेशन देना, और मेनली हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट है, और वो एक पॉइंट क्या है, डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर आपको ये बता दूं क्या है, क्योंकि सबने पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ हम व्हाट्सएप के न्यूज से चलते हैं। आज की डेट में डिसिप्लिनरी कमेटी में क्या होता है कि 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 गवर्नमेंट नॉमिनी और 3 इंस्टीट्यूट के मेंबर होते हैं, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। व्हाट दे आर प्रपोजिंग, वो कहते हैं 5 ही मेंबर रखो, गवर्नमेंट नॉमिनी 3 कर दो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 कर दो, और गवर्नमेंट नॉमिनी प्रेसिडिंग ऑफिसर का, गवर्नमेंट नॉमिनी को भी काउंसिल ही बताए और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते, सो गिविंग मोर पावर्स टू द सेंट्रल काउंसिल। Now, what we are saying, institute is saying, taking a call and representing to the standing committee, कि no, we don't want, we want the whole thing only, where let the MCA appoint the government nominee. होना सब कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर ही, let the MCA only appoint the government nominee, and but the presiding officer should be a chartered accountant. Otherwise, who will explain to that government nominee what is accounting standard, what is code of ethics? उसको समझ ही नहीं आना। क्या एक डॉक्टर जो है मेडिकल एसोसिएशन के कोड डिसिप्लिनरी कमेटी को हेड कर सकता है, बता सकता है भाई इसने सही तरह से ऑपरेशन किया कि नहीं किया? तो ये उनको समझाना चाह रहे हैं, एंड रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, आपको बताऊं ऑलरेडी राइटिंग में दे चुके हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, 3 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी में दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन, और आप सोचिए कि कितनी पीछे मेहनत चलती है, हम मेंबर्स को नहीं पता। सारे काउंसिल मेंबर्स लगे हुए हैं कि कौन कौन स्टैंडिंग कमेटी में है, किस किस को रिप्रेजेंट करके उनको रिप्रेजेंटेशन भेजा जाए। सो ह्यूज, इट इज अ ह्यूज मैथ एक्सरसाइज, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। बट यस, उसके ऊपर इसके अलावा आपको इशू है ही नहीं संदीप जी, बाकी है क्या इशू बताओ? सी अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ हम बात करते हैं, सी अमेंडमेंट एक्ट में है क्या इसके अलावा? अनम्यूट करके बोलिएगा संदीप भाई। सर देयर आर इश्यूज, राइट, बट ठीक है, वे आज का टॉपिक है नहीं। आई थिंक I'll personally share with you a note, तो नोट है, देखिए। हेलो, हाँ बोलो ना जी। तो इश्यूज तो है सर, ऐसी बात नहीं है। आई बताओ हैव ना, रीड थॉरली, बताओ मैंने नोट भी तैयार कर रखा है। ना, बताओ ना क्या। सबसे बड़ा जो इशू है, बस 2 मिनट दीजिए, मुझे मैं बताता हूँ। संदीप जी, आपकी ना आवाज कट रही है बीच बीच में ना, आपकी आवाज बीच बीच में जब इशू आता है जब गायब हो जाती है। जी जी, 1 मिनट सर। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अब आ रही है। आ रही है ना सर? जस्ट मिनट, मैं सबसे बड़ा इशू बता देता हूँ जो अमेंडमेंट एक्ट में है, जो व्हाट आई फील कि ये क्या है कि इट्स टू माय अंडरस्टैंडिंग इट्स अटैक ऑन ऑटोनोमस बॉडी। ये आपकी ऑटोनोमस बॉडी पे ही अटैक है सीधा। व्हाट दे हैव प्लान की सेक्शन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 9A, जो अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शन 9A की बात कर रहे हैं। And there it is written that there will be a coordination committee of all 3 institutes, ICAI, ISCI, ICWI, and president, vice president, secretary of all the 3 institutes will hold the meeting once in a quarter. This meeting will be chaired by the secretary, Ministry of Corporate Affairs. All the power have been taken. What we understood, all the power had been taken by section 9(4), clause 4. If you see the language of section 9(4), clause 4, am I audible? Audible, sir? मैं सेक्शन 9(4), क्लॉज 4, सेक्शन 9(4) के क्लॉज 4 को मैं आपको रीड आउट कर देता हूं। व्हाट दे हैव रिटन इन देयर, दे हैव रिटन the committee shall be responsible for the effective coordination of the function assigned to each institute and shall first ensure quality improvement of the academic infrastructure, research and all related work of the institute. First. Second, focus on the coordination and collaboration among the profession to make the profession more effective and robust. Third, align the cross-disciplinary regulatory mechanism for interprofessional development. Fourth is the concluding one. Make recommendation in a matter relating to regulatory policies for the profession. Means क्या हुआ सर कि to my little understanding, जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है एक के बारे में, या what I understood
by reading and analyzing this profession कि MCA ने कमेटी बना दी जहाँ पे CA, CS और ICW इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट वाइस संदीप भाई ऐसा है, ये तीनों इंस्टीट्यूट की कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले भी थी, एग्री पहले भी थी। और इसके अंदर वो क्या है, बेसिकली इट इज नॉट कि इंस्टीट्यूट जो इनेक्टमेंट ऑफ एक्ट है वो खत्म हो गया। सर मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा सर, बट नाउ इट इज रिटन देयर, पहले भी थी स्टेट वैसे ही चलता, अभी वैसे ही चले। अब जो लिखा हुआ है कि जो प्रोफेशनल की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय दैट टीम। बट अरे उसके अंदर कमेटी में कौन है? हमारे प्रेसिडेंट, तीनों इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट्स। अभी भी इन तीनों इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट्स की एक पहले कमेटी हुआ करती थी, और हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी एक कमेटी थी जिसमें तीनों इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेशन के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई थी। जी जी जी, क्योंकि उनको एक मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप का चाहिए, which is there under the Companies Act also। हमारे इंस्टीट्यूट ने भी इसको अप्रूव कर दिया to make implement that, they want this, and our institute is ready, बाकी other 2 institutes are not yet ready। चलो आप देख लीजिएगा, ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। मैं पर्सनली आपको नोट शेयर कर दूंगा। अरे आपने बिल्कुल किया, बट आप समझो कि ये चीज हमारे सारे काउंसिल मेंबर्स ने, प्रेसिडेंट ने, लीगल ने, जी जी, सबने स्टडी किया है पूरा सीएम अमेंडमेंट बिल। जी जी, आप समझिए कि कोई अगर वहां पे किया है, और अगर लीगल सेल ने और सारे सब प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, सबने उसको देखा है और स्टैंडिंग कमेटी में भेजा किस चीज में क्या बात कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही किया हो, और सब कुछ देख के किया होगा। सर वी फुली ट्रस्ट यू, ऐसा नहीं है कि हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आप पे, बात नहीं हो रही, बट यस ऑल पॉइंट्स हैव बीन कंसीडर्ड ऑफ द सीएम अमेंडमेंट बिल, एक पॉइंट। तो लीगल सेल ऑफ आईसीआई हैज ड्यूली कंसीडर्ड ईच एंड एवरीथिंग कि उसका इंपैक्ट क्या है। कोई भी चीज इंस्टीट्यूट के लॉन्ग रन में जिसको इंपैक्ट कर रहा है उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन पूरा दिया, तभी तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में वापस भेजा है। जी जी जी, चलिए, गुड डिस्कशन। ठीक है सर, और कोई पॉइंट? नहीं सर, प्लीज। चलिए सर, बैलेंस शीट फाइनल करते हैं सर। बैलेंस शीट नहीं, ठीक है, बट these discussions are very important, and we should regularly have it. Maybe certain new points come out later also. Correct. So unless we know from you what are the issues, क्योंकि हर एक के पास, एक जने के पास सारे इश्यूज नहीं पता लगते, बाकी सब मेंबर्स के पास भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो आए हमको पता लगे तो वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, जहां लगेगा उनको आप बोल देंगे हाँ जी ये लो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। स्क्रीन आ रही है? हाँ जी आ रही है। ग्रेट। सो अगर हम बात करें व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अ बैलेंस शीट, उससे पहले मैं एक ये बात करना चाहूंगा जो मैं सबसे पूछूंगा अभी, कि जब हम कोई ऑडिट करते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि हम मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, तो उसके पास रॉ मटेरियल होता है, उसको वो प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस करने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो इन अवर ऑडिट रिपोर्ट what is the final product? You can please type in the chat box. You can please type on the chat box. What is our final product? Yeah, Sonal Patel is saying audit report. Yeah, very rightly said. Audit report is our final product, but we have seen many times that our final product is ready even before the raw material is ready. And this is the reason why what you said, शशांक भाई, की कुछ मेंबर्स ने कहा कि यूडिन जो है वो उसकी डेट क्यों नहीं एक्सटेंड हो सकती है, वो आगे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बैलेंस शीट रेडी है टाइम से, अगर रॉ मटेरियल रेडी है, तो मेरे को उसका ऑडिट ही तो करना है, रिपोर्ट ही तो इश्यू करनी है। सो दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस। लेट अस टॉक प्रैक्टिकली। यस, वेरी राइट,
So process, it is that financial statements पहले बनते हैं and then उसका audit report होती है, फिर directors report होती है. But yes, the fact at certain point of time is maybe some of us are concentrating only on this and not on this or this, though our final product is this. Again, a major cause of concern. Major cause of concern. If I talk about an annual report, अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ annual report, तो उसके अंदर डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट ही होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. और ऑडिटर्स रिपोर्ट बेस्ड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. पर हम सिर्फ, शायद हो सकता है काफी लोग सिर्फ इसी पे ध्यान देते हैं, इस पे और इस पे ध्यान कम देते हैं. जबकि एज पर अवर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, this is our final product and we have to take care of director's report as per SA 720 also. पर financial statements में क्या क्या होता है, of course everyone knows, just saying in a short minute, balance sheet, statement of profit loss, और अगर मेरा Ind AS की balance sheet है तो statement of changes in equity and cash flow statement. कुछ companies के लिए cash flow mandatory नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए mandatory है. And the most important is my notes to the accounts. This is the notes to the accounts. अगर notes to the accounts नहीं है तो आपकी financial statements are incomplete. They are incomplete. Right? अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इनकी बात करूं, सबको पता है 31 मार्च कैश फ्लो सबके लिए है एक्सेप्ट 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड स्टार्टअप कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 13 जून 2017. शेड्यूल 3 के हिसाब से उन्हीं कंपनीज की, और ऑफ कोर्स एमएसएमई की डिटेल जानी है. ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन has been changed with effect from 1st April 2021. पिछले साल की स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थी पेड अप कैपिटल should be less than 2 crores and less than 50 lakhs and turnover should be less than 2 crores. Now this has changed with effect from 1st April 2021, which is now paid up capital should be less than 2 crores and turnover should be less than 20 crores. वो स्मॉल कंपनी होगी. तो अब हमारे कितने क्लाइंट्स होंगे जिसके लिए मार्च 22 में कैश फ्लो नहीं होगा, जिसके 20 करोड़ से नीचे के टर्नओवर है. नो कैश फ्लो, नो कारो भी एप्लीकेबल नहीं है स्मॉल कंपनीज. कारो भी नहीं होगा, हो सकता है पिछले साल था, हो सकता है इस साल ना हो. सो अगर मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी होगी इस साल तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा. राइट? कुछ जनरल बातें. ये पहला क्वेश्चन, ये जो मेरी बैलेंस शीट होती है वो एज एट होती है कि एज ऑन होती है? एज ऑन 31 मार्च 22 और एज ऑन 31 मार्च 22? एज एट होती है कि एज ऑन? राजेश खंडलवाल जी, चंद्रशेखर जी, सबका कहना है एज एट. very rightly saying that yes, it has to be as at. as on नहीं होता. शेड्यूल 3 में भी as at दे रखा है. as on is a full day, as at is at the closing hours of the 31st March. and of course प्रॉफिट लॉस का टाइटल ध्यान रखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और इनकम एक्सपेंडिचर हो सकता है अगर मेरी सेक्शन 8 कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं होता, इनकम एक्सपेंडिचर. नाउ this rounding off based on turnover is mandatory. It is mandatory for 22. हमने तो जो पहले लेक्चर दिए थे शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट्स के लिए, तब हमने कहा था 21 में ही इसको राउंड ऑफ कर ले. अब 22 में, क्योंकि मैंने तो अभी भी कई बैलेंस शीट देखी, कंपनीज की बात कर रहा हूँ, प्रोप्राइटरशिप पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा. उनकी जब बात करनी होगी आई विल टॉक अबाउट देम आल्सो. मैंने कई बैलेंस शीट्स देखी थी जो कहती थी कि मेरा मान लीजिए बैंक बैलेंस है या रिजर्व सरप्लस है तो वो है 1,24,350 रुपए 35 पैसे. पहले भी गलत था, पैसे में तो आता ही नहीं था, रुपीज में ही आना था. एंड देन सेकेंडली नाउ इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ. यू कैन नॉट गिव इन होल राउंडेड ऑफ फिगर. मैंडेटरी, प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर 22 बैलेंस शीट.
अगर मेरी लेस देन 100 करोड़ की टर्नओवर है, अब टर्नओवर नहीं होगा, अब मेरा टोटल रेवेन्यू होगा, that has to be rounded up to the nearest hundreds, thousands, lakhs, millions or decimals thereof. And more than 100 crores है तो ये मेरा hundreds और thousands हट गया, lakhs, millions or crores or decimals thereof. Right? And comparative figures is also to be disclosed for the last reporting period. पहले राउंडिंग ऑफ की बात करें. एक जो पॉइंट हमारे माइंड में आया जब हम क्योंकि बिकॉज आपको जब 22 की बैलेंस शीट करनी होगी तो 21 का भी राउंडिंग ऑफ करना होगा. सो टू ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस हमने बोला भी, एंड व्हाट वी डिड वाज दैट वी राउंड इट ऑफ फॉर द 21 आल्सो. सो व्हाट वी थॉट दैट इट वुड बी टफ लेटर ऑन टू सी द फिगर्स एंड फीड इन माय आरओसी, माय AOC4, माय इनकम टैक्स रिटर्न. तो हमने क्या प्लान किया कि लेट अस राउंड इट ऑफ, बिकॉज लेस देन 100 करोड़ है तो लेट अस राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स. तो मान लीजिए यही 1,24,350 है तो वी राउंड इट ऑफ टू 1,243.50. तो मुझे पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में क्या भरना है, ये पॉइंट हटा के भरना. अदरवाइज देयर वुड बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन राउंडिंग ऑफ इन इनकम टैक्स एज वेल एज AOC4, क्योंकि वहां पे राउंडिंग ऑफ नहीं लेते, वहां पे फुल फिगर लेते हैं. तो प्लीज प्लान दैट दिस राउंडिंग ऑफ इज डन. If you feel you can do in thousands or lakhs or millions, whatever you want, and you are comfortable in putting the figure, because most of the things it is that the chartered accountants won't be filling the ITR or the AOC4. Our support staff would be doing that. So would they be competent enough to fill the complete figures? So think of that one solution. What I'm trying to give, if it is less than 100 crores, round it off to 100 rupees. Nearest hundreds. Now comparative figures have also to be required to be disclosed. हमने देखा कि नोट्स में कई बार आता है तो जो अगर राउंडिंग ऑफ होनी है तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी है. ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में मैं नियरेस्ट हंड्रेड्स कर दूं और जब नोट्स में आऊं तो पूरे अमाउंट दे दूं या लैक्स में लिख दूं उसको. नो, सेम है. और कंपैरेटिव फिगर तो प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी नोट्स में देनी. फॉर एग्जांपल, आई हैव सेड दैट ड्यूरिंग द ईयर दिस मच अमाउंट वाज क्लेम्ड एज अ बैड डेट, so I have to give the previous year figure there also. So whatever data I give in my note to accounts for everything, even the errors which we noted at the FRRB, and in certain cases QRB also, that in the fixed asset schedule क्या होता है? ग्रॉस ब्लॉक, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग, depreciation block, opening, addition, deletion, closing, and then the WDV, current year and past year. So we say everything is given, पर मेरे को इसके previous year के figures भी देने हैं. Then what that मेरा total आता है और total का भी previous figure देना है. And some people what they do, वो दोनों साल के statement दे देते हैं. 22 का भी दे दो और 21 का separate दे दो, तो previous दोनों साल के figures दे दो. तो जिस तरह से आपको देना है, यू कैन टेक इट अकॉर्डिंगली एंड गिव इट. करने हैं वेरी गुड, नहीं कर रहे अब करना चालू करो. ये लिंकिंग ऑफ नोट्स विद द बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस, शशांक जी तो आईटी से बहुत ज्यादा उसमें वर्क करते हैं, तो उनको पता है कि लिंकेजेस एवरीथिंग. और इवन आई वुड से नॉट ओनली शशांक भाई, मेनी ऑफ द यंगस्टर्स दे आर वेरी गुड इन एक्सेल. So they know all of the linking from the trial to the schedules. Schedules हम बोल रहे हैं, though it is notes and then the balance sheet profit loss. So you make one change, it is corrected everywhere. But certain of my friends may not be doing that, or even the articles, or even the support staff, not articles, even the support staff, they might not be knowing. So what they do, when they copy paste the financial statements from previous year to current year, तो previous year की change नहीं करते, current year में सारी change कर देते हैं. तो होता क्या है कि 22 की फिगर्स यहाँ रहती है, यहाँ पे 20 की रह जाती है, सिर्फ ऊपर इसको 21 कर देते हैं, फिगर्स वही पुरानी रह जाती है. प्लीज टेक, वी हैव सीन दैट, तो द परसेंटेज कुड बी वेरी लेस, maybe less than 0.01%, but yes, these errors are there. Right? So please take
और कई बार क्या होता है, नोट्स में फिगर कुछ होती है क्योंकि उसको आपने एक्सेल को प्रॉपरली यूज नहीं किया, वहां नोट्स में चेंज करने पे यहाँ फिगर चेंज नहीं होती, तो यहाँ फिगर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ढूंढते रहते हैं क्या रीजन. सो टेक केयर ऑफ दिस प्रैक्टिकल. One question: Can this balance sheet and profit loss be on letter of the auditors? क्या बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस ऑडिटर्स के लेटर हेड पे हो सकती है? राजेश खंडेलवाल जी, शशांक अग्रवाल जी का कहना है ना, सोनल पटेल जी का भी कहना है ना, सुमित गर्ग जी का भी कहना है ना. Yes, very rightly that no, it cannot be only the auditor's report. But I was in one of the places delivering a lecture on this only, maybe a few months back, in the northern part of our country only. When I told them, कहते क्या बात करते हो, हमारे तो सारी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस जो ऑडिट करते हैं सब हमारे ऑडिटर्स के लेटर हेड पे होती, आप तो नई बात बता रहे हो. So there could be certain friends, maybe very less, who are still printing on the letterhead of the auditor, and yes, this is not allowed, and this would be, I would say, not proper, and if it comes to the knowledge, it becomes a matter of the DC, and it is a misconduct, right? Negligence, I would say it is a negligence. Pramod sir, sorry, legally asking, लेटर हेड के बारे में जिक्र हमारा कहीं पे हुआ है वैसे, लाइक कंपनीज एक्ट या नहीं, कंपनीज एक्ट नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स के अंदर है, एसक्यूसी उसके अंदर ये आता है कि लेटर हेड शुड बी ऑफ द कंपनी, और कंपनी को भी लेटर हेड की जरूरत होती है सर? मतलब नहीं, जरूरत नहीं होती है, ऑडिटर्स का लेटर हेड पे हो सकता है. ओल्ड कोड ऑफ एथिक्स डिसीजंस. ओके, ठीक है सर. ये कंपनीज की डेट ऑफ साइनिंग बैलेंस शीट की कैसे होती है, मतलब कौन पहले साइन करता है? सर चंद्रशेखर जी कुछ कह रहे हैं इस पे थोड़ा. ऑन सीए's letterhead who is maintaining account separate from CA. Parik ji, I don't think so that on a chartered account who is doing accounting work, it can be on his letterhead, because the financial statements are of the entity. Correct. So it has to be on the company's letterhead, not a consultant or someone else. सुनील गोगिया जी का आंसर था, डायरेक्टर्स. मेरा क्वेश्चन यही है कि साइनिंग ऑफ बैलेंस शीट का सीक्वेंस क्या होता है, कब बोर्ड अप्रूव करता है, कब डायरेक्टर साइन करता है, कब ऑडिटर साइन करता है? रूपल जी का कहना है डायरेक्टर पहले करते हैं तो बोर्ड उसके बाद अप्रूव करता है, या ऑडिटर पहले साइन करता है फिर बोर्ड अप्रूव करता है फिर डायरेक्टर कब कौन पहले करता है? मतलब कि फर्स्ट इट इज डायरेक्टर साइन, फर्स्ट बोर्ड अप्रूव, शिखा जी का कहना है, then auditor sign or director sign, and then what is the sequence? सर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है धीरे धीरे, आई कैन फील. यार वो गले में ना हल्का सा वो खिचखिच सी है और कुछ नहीं. First board approve, then director sign, then auditor sign. Board approve, director sign, then auditor sign. राजेश खंडेलवाल जी का भी, शिखा चौहान जी का भी बिल्कुल सही कहना. बट हमारे कितने मित्र हैं जो बैंक ऑडिट करते, कहते हैं जब वहां जाते हैं बैलेंस शीट पे सिर्फ ऑडिटर के साइन होते हैं, डायरेक्टर्स के साइन ही नहीं होते. ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे कैसे होता है? कि जब बैलेंस शीट देखते हैं कई जगह सर्कुलेशन में मिल जाती है, बैंक में मिल जाती है, जहां सिर्फ ऑडिटर के साइन, ये सिर्फ एक डायरेक्टर के साइन. रूपल जी का कहना है फर्स्ट बोर्ड अप्रूवल देन साइन बाय ऑडिटर. नहीं रूपल जी, ऐसा नहीं है. फर्स्ट बोर्ड अप्रूवल, then director sign, and then the auditors sign it. Then it goes to the board again for the adoption of for the approval of the audited financial statement. Then AGM is called. Right? कोई भी किसी भी फोर्स के अंदर ऑडिटर को पहले साइन नहीं करना है. ऑडिटर को पहले साइन नहीं करना है. I remember few years earlier, maybe 15 odd years earlier, we were auditors of one of the entities who were under some ministry. So the chairman of that entity was some IAS officer of that ministry.
तो दे केम टू अस एंड सर आप बैलेंस शीट ऑडिट कर दी तो आप साइन कर दो। मैंने कहा भाई इसमें तो चेयरमैन के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन नहीं है। कहा सर पहले आप साइन करोगे, वो तो आईएएस है, वो पहले कैसे कर देंगे। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, पहले वही करेंगे तब मैं करूंगा। कहा नहीं जी इससे पहले तो हमेशा ऑडिटर करते आए हैं। मैंने कहा नो, फर्स्ट वो करेंगे देन आई विल डू, अदरवाइज आई विल नॉट। एंड देन ऑफ कोर्स दे अग्रीड। सो आई शुड नो दैट एंड प्लीज टेक केयर। Here I like to tell you very important point out here, where if we don't take care, there is a problem which comes later on in the DC matters on the auditors. What happens now? Suppose in a company or in a partnership firm, there are two groups, and there is a tussle between the management. और एक डायरेक्टर ने साइन किया या एक पार्टनर ने किया, दूसरे ने नहीं किया, आपको हल्का सा भी हिंट हो कि आपस में झगड़ा है, please tell all directors to sign or have a board resolution where you see that proper board notice was given, and in case of partnership all partners have signed. Otherwise what happens is that चार पार्टनर्स थे, दो एक ग्रुप के चाहे ब्रदर्स हैं जो मर्जी हैं, एक ने दूसरे पे एलिगेशन लगा रखी है, इन्होंने पैसा साइफन किया, दो पार्टनर्स साइन किया, हमने साइन कर दिया, तो वो बाकी पार्टनर्स इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट डाल देते हैं कि भाई ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट उन ऑडिटर से मिलके पैसा साइफन ऑफ कर लिया, उसमें कैश इन हैंड था 25 लाख रुपए, आपने एक पार्टनर को डेबिट कर दिया सर। कहता वो पैसा लेके चला गया, साइफन ऑफ गया मनी। सो देयर वाज नो अपर अप्रूवल, हाउ डिड द ऑडिटर साइन? सो प्लीज ऐसे केसेस में be extra cautious, have your proper documentation. Why to take a trouble or stress? अमित जी का क्वेश्चन है कि प्लीज डिस्कस अबाउट द प्लेस ऑफ साइन। प्लेस ऑफ साइन इज कि जहां पर आप साइन कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बोर्ड मीटिंग कहीं और हो रही है और ऑडिटर कहीं और साइन कर रहा है। द ओनली थिंग इज व्हेन द डायरेक्टर साइन, इट कुड बी डिफरेंट डेट्स टू, कोई नहीं, जब वो साइन कर रहे हैं तो वहां पे अपने वो साइन और डेट अलग डाल दे और ऑडिटर अपना अलग डाल दे, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। सो प्लीज साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लीज टेक केयर टू अवॉइड एनी लिटिगेशन ऑन द ऑडिटर्स। सर ये एसडी का भी रेलेवेंस थोड़ा सा बता दीजिए, एसडी का क्या मीनिंग रहता है? अरे एसडी का मतलब होता है साइंड, राइट? नाउ एसडी मेरे हिसाब से ना, वी शुड नॉट डू एसडी, वी शुड ऑलवेज टेक द साइंड फाइनेंशियल्स। और देखो दोस्तों, एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लो कि जब तक मैं मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, जब तक मैं उससे ऑडिट के 4 क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, 10-15 डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराऊंगा, मेरा ऑडिट नहीं हुआ। मेरे को वो कहेगा आपने कुछ काम किया ही नहीं, फीस किस बात की। सो आप बैलेंस शीट उनके पास भेजिए, उनसे साइन कराइए, बच्ची आपकी साइंड कॉपी चाहिए। प्लीज डोंट टेक एनी ओनस ऑन योरसेल्फ, बिकॉज आपने एसडी करके अपलोड कर दिया, कुछ भी कर दिया, कल को वो मैनेजमेंट, आपको लगता है कि मैनेजमेंट आपके साथ है, कोई भी इशू आने पे वो बाहर चले जाएंगे, देन दे विल से हमने आपको कब कहा, आपने बिना पूछे हमसे बैलेंस शीट भेज दी। So always take their signed copies and then only do it. We have given too much liberty at various places to our clients. Please be very careful. कुछ चीजों में जब आप उनसे साइन कराएंगे, उनको पता लगेगा कि हमने कितना काम किया, तभी तो फीस आप डिमांड कर पाओगे। आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, एंगेजमेंट लेटर, MRL। आप जब 10-15 सर्टिफिकेट्स लेंगे, बैलेंस शीट साइन कराएंगे, जब हमने आज से 15-20 साल पहले डॉक्यूमेंटेशन चालू किया, एंगेजमेंट लेटर बनवाया, तो हमारे जो फर्स्ट वन ऑफ द क्लाइंट्स को हमने भेजा, वो कहता क्या बात कर रहे हो सर, बैलेंस शीट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट तो आप बनाते हो। हम कहा नहीं सर, हम सिर्फ आपको हेल्प करते हैं, बनाते आप, उठा लो ऑडिट रिपोर्ट। And he took 2 days just to sign that MRL. He read each and every point. What is his responsibility? We don't have any document which is signed by the client which gives his responsibility. And these documents are only and only for us, not for them. Please don't hesitate. Many of us have created. Please do create. Only these documents would help us. They would help us. So please take that. एक बार आपने बनाने हैं, उसके बाद तो हमने भी सब कॉपी पेस्ट ही करना। Even the big 4, big 10, everyone does like that. ऐसा नहीं है कि क्लाइंट MRL बनाता है, हम उनको कहते हैं हमको ये चाहिए आपसे,
फिर वो हमको साइन करके दे देता, विच इज फॉर अस, दीज डॉक्यूमेंट्स आर फॉर अस नॉट फॉर देम। तो मैं अपना ध्यान खुद नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा मेरा ध्यान, राइट? सो डेट ऑफ साइनिंग again we have discussed, and this is a very very important point. And then payment to shareholders, please take care कि अगर होता क्या है कि मान लीजिए समटाइम्स इन हरी व्हाट हैपेंस कि डायरेक्टर से लोन ले भी रखा है, फिर उनको रिपेमेंट की तो अलग अकाउंट में चली गई, और दोनों लेटर अकाउंट्स अलग अलग चले गए। नाउ व्हाट हैपेंस इन सच अ केस कि जब इनकम टैक्स से केस लगा, उन्होंने कहा सारे लेजर्स की कॉपी दे दो, सारे डायरेक्टर्स की, एक मेरा लोन का गया, एक मेरा एडवांस का चला गया, तो क्या 222 ही नहीं लगेगा? Certain things can be avoided. So I'm just bringing out because इन सब चीजों को बाद में बचाना, we have seen certain cases practically. I'm just bringing out practical issues. So one has to be very very careful on this, right? और TDS का पॉइंट शशांक सर ने भी बताया ही, that case one has to be careful. अभी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के अंदर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इसके अंदर भी नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं क्या? Does the audited balance financial statements have notes to the accounts? Are notes to the accounts prepared of the audited financial statements of proprietorships and partnerships? Yes, पारिक सर का कहना है yes. बाकी किसी का नहीं आया तो नहीं बनते क्या? सुभाष जी का भी कहना है, सोनल जी का, लोक जी का, रूपल जी का, सबका कहना है यस, ग्रेट। तो उसमें हम लिखते क्या? हम ये लिखते हैं कि दैट दिस फर्म इज मेंटेनिंग accounts on accrual basis, inventories are valued at cost or lower of cost, and net realizable value, fixed assets are stated at cost, depreciation as per the income tax act. It is not mandatory but notes generally prepared. राजेश खंडवाल जी कह रहे हैं। अच्छा, ओके। तो इसके अलावा तो राजेश सर कह रहे हैं कि तो हो सकता है कि उसमें कुछ जगह फिर नहीं बनते होंगे, जनरली प्रिपेयर्ड। तो इसके अलावा कुछ नोट्स में लिखते हैं क्या? इसके अलावा कुछ नोट्स में लिखते हैं? अभी हमने बैलेंस शीट्स ऑडिट की, अभी करेंगे प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की कुछ जो एंड मोमेंट पे आने वाले हैं, वो जब 10 फरवरी के आसपास ही आएंगे। क्या नोट्स में कुछ और लिखा जाता है? एनआरबी तो मैंने दामोदर जी बता ही दिया कि इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन। कुछ और? एक सिंपल मेरा क्वेश्चन, चलिए एक मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन, क्या उसमें ये लिखा जाता है कि डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस आर सब्जेक्ट टू रिकंसिलिएशन? बेसिक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो अलग दिया। क्या ये लिखा जाता है डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन? यस, सोनल जी का कहना है यस। और किसी का? परीक्षा कहते हैं यस, बैलेंस का यस, आलोक जी भी कहना है, सभी लिखते हैं कि बैलेंस कंफर्मेशन आर पेंडिंग। अच्छा, जब अब अगर ये लिखा जाता है, ये विद्या जी कहना है यस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, नोट्स में क्या लिखा जाता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नोट्स में नॉर्मली तो यही लैंग्वेज हमने देखी थी कि डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। अगर सबसे पहले तो ये समझ ले, नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी मैनेजमेंट की है। बनाता कौन है? मैनेजमेंट, ऑडिटर नहीं। हालांकि मेरे पास कई बार क्वेश्चन आता है, आज की डेट में भी आ जाता है कि सर ये मेरा ऑडिटर का इशू है, कैन आई, ये मेरा इशू है, क्या मैं इसको नोट्स में डाल दूं? मैं कहा सर ऑडिटर का इशू है, नोट्स में नहीं जाएगा। नोट्स के अंदर कोई भी लैंग्वेज ऑडिटर की नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट की होती है। और अगर नोट्स के अंदर ये लिखा है डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड लोन्स एडवांसेस आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, तो क्या ऑडिटर ने अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट को डिस्क्लेम किया, क्वालिफाई किया, या कह दिया सब्जेक्ट टू, कह दिया कि एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर? आप समझिए, व्हेन द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स आर सेइंग हमारे डेटर का पता नहीं, क्रेडिटर का पता नहीं, लोन्स एंड एडवांस का पता नहीं, सब कुछ अनकंफर्म्ड है, मैंने डेटर्स बताए हैं 2 करोड़ के, हो सकता है 1 लाख, हो सकता है 50 लाख, मुझे नहीं पता, सब कुछ सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन।
मैनेजमेंट खुद कह रहा है, हो सकता है हम कंपनीज के केस में भी लिखते हो, अगर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, हाउ कैन द ऑडिटर से एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर? He cannot say it is true and fair. He say no, everything is not there. It has to be not other matter, sir. It is a pervasive matter where you don't have the audit information, evidence. So it would be disclaimer that I cannot say whether they are true and fair. How other matter? डेटर का पता नहीं, क्रेडिटर का पता नहीं, एडवांसेस का पता नहीं, कुछ नहीं पता मेरे को तो। इन्वेंटरीज भी कहते हैं मैनेजमेंट को पता, ऑडिटर ने कुछ चेक नहीं किया, कैश का पता नहीं, कंफर्म जो प्रोप्राइटर ने, पार्टनर ने, डायरेक्टर्स ने कर दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ऑडिटर ने तो कुछ चेक ही नहीं किया, देन हाउ इट इज ट्रू एंड फेयर? काइंडली टेल मी. Please see if any language is given in the note to the accounts which is doubtful on the management itself. Like management itself is saying, I don't know about this. Then the auditor needs to issue a modified report accordingly. So what should be the language? What should be the language? The language should be always positive from the management. Management should say, my debtors and loans and advances are stated at the amount at which they are recoverable. My creditors are stated at the amount at which they are payable. फिर मेरे को एक्सटर्नल कन्फर्मेशन अलाउ नहीं करता तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे 505 की नॉन कह सकता हूं कि उन्होंने कंप्लायंस नहीं दिया. आप अंडरस्टैंड ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने भेजा लेकिन नहीं आया, लेकिन उसके बाद एज पर सुनील जी देयर इज ऐसे 505 इट टॉक्स अबाउट दैट इन दीज केसेस you have to do further procedures and if you are satisfied then there is no qualification required. हमारे स्टैंडर्ड्स कहते हैं, and these standards आप सोचिए जो इंस्टीट्यूट के हैं, they are same world over. They are same world over. ये हम प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या प्रीवियस ईयर की फिगर्स देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? क्या प्रीवियस ईयर की फिगर्स देते हैं जैसे कंपनीज में तो देते हैं मैंडेटरी एज पर शेड्यूल 3? क्या प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में देते हैं? नो. विकास चौहान जी का कहना नो. रूपल जी का कहना प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में देते हैं, यस. रूपल जी का कहना यस. सुनील गोगा जी कहना नो. विद्या खन्ना जी का भी कहना यस. जो दे रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं दे रहे काइंडली सी क्या देना जरूरी है. यू नो वी बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव टू क्वेश्चन सेवरल थिंग्स. अगर देना जरूरी है, जैसे शशांक भाई ने पूछा सर कहां से आता, तो अगर देना जरूरी है तो कहां से आता? देना जरूरी है और कहां से आता है? दिस इज फ्रॉम द फ्रेमवर्क फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फ्रेमवर्क फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज इशूड बाय ICAI. देयर वर वेरियस फ्रेमवर्क्स. जैसे जैसे उनके स्टैंडर्ड्स बनते गए, फ्रेमवर्क्स खत्म होते गए, अब सिर्फ 3-4 फ्रेमवर्क रह गए हैं. And even this schedule 3 is based upon the framework for the presentation of finance, which says that it is mandatory to give the previous year figures. अब proprietorship partnership कहता है मैं नहीं मानता, मैं नहीं देता previous year figure. बैलेंस शीट किसकी है? उसकी. बैलेंस शीट किसकी है? उसकी. उसने बैलेंस शीट में नहीं दिए तो मेरे पास क्या इशू है? कोई इशू नहीं है, सिर्फ ऑडिटर्स रिपोर्ट में इतना ही तो लिखना है कि the proprietor has not disclosed the previous year figure which is not in compliance with the framework for the presentation of financial statement issued by ICAI. assessee because auditor because income tax को कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं. क्या दिक्कत है? So we are also safe. assessee has no problem. क्या ये प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के ऊपर AS एप्लीकेबल हैं? क्या उनके ऊपर AS एप्लीकेबल हैं? Accounting standards are mandatory on yes. शिखा जी का कहना यस. अगर AS मैंडेटरी हैं तो अभी राजेश भाई ने कहा था कि नॉट मैंडेटरी बट नोट्स जनरली प्रिपेयर्ड, तो क्या हम उसके अंदर या आलोक जी ने कहा था बेसिक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड. बेसिक नहीं सर, सारी जो मैंडेटरी है वो करना होता है.
Vidyaji Gana check opening balances as far as 501. That is as per in case of previous year non-audited. But AS, that is SA, AS भी maximum mandatory है. Yes, Yogesh ji सही कह रहे हैं as per classification. Now there are 4 levels, level 1, 2, 3, 4. तो जो भी लेवल है उसके अंदर AS10 सबको एप्लीकेबल है. क्या कोई भी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप AS10 को कंप्लाई करती है? नहीं करती, क्योंकि वो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है. जब वो इनकम टैक्स के हिसाब से करती तो AS10 कंप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहता है डेप्रिशिएट ओवर द यूजफुल लाइफ, डिस्क्लोज द ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिशिएशन ब्लॉक, नेट ब्लॉक, कोई नहीं करता. तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, उनको इनकम टैक्स से कंप्लाई करने दो. आप अपना ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर क्वालिफाई कर दो. The AS10 has not been complied with. AS22 deferred tax has not been complied with. Deferred tax पे तो current tax provision सब mandatory है. So not complied with, और उसके बाद आप उसको क्वालिफाई कर दो. ना इंस्टीट्यूट को, मतलब कि ऑडिटर भी सेफ है, असेसी को कोई इशू नहीं है, और इनकम टैक्स को भी कोई इशू नहीं है. So everyone is happy. Right? So in proprietorship partnerships also, please take care of all these points. Notes, significant accounting policies I just talked. आपको जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल है, उन सब का जैसे कंपनीज में देते हैं, इसमें भी देना मैंडेटरी है. इसमें भी देना मैंडेटरी है. राइट? एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड ऑल 3. कंपनीज के केस में जाऊं तो शेयर कैपिटल रिजर्व्स की बात करता हूं. सर्टेन पॉइंट्स विच वी माइट मिस, आप प्लीज चेक कीजिएगा ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, मास्टर डाटा से. हमने कई बार देखा कि देयर इज अ डिफरेंस. मैनेजमेंट ने ऑथराइज कैपिटल बढ़ा ली और ऑडिटर को पता नहीं, बैलेंस शीट में उन्होंने चेंज नहीं की और वही पर चला जा रहा पुराना. सो in every case, have it checked from the master data. Keep in the audit file the master data, which will give you various details. कितनी authorized है, कितनी paid up है, one of the document to be checked. मान लीजिए अगर authorized capital increase हुई है इस साल, जिस साल आप audit कर रहे हैं, in that case the increase fee paid for the increase in authorized capital, though debited to profit loss, but under income tax that is not allowable. So we have to take care. We are also assisting them in filing the income tax returns. एक ये चीज हमने देखा है बहुत जगह मिसिंग है. रिकंसिलिएशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. कि मेरा ओपनिंग कितना था, एडिशन कितना हुआ, डिलीशन कितना हुआ, क्लोजिंग कितना हुआ, मेरा पेड अप कैपिटल चेंज हो रहा है या ऑथराइज चेंज हो रहा है. तो ये रिकंसिलिएशन चाहे करंट ईयर में हुआ, चाहे प्रीवियस ईयर में हो, चाहे 22 में हुआ, चाहे 21 में हुआ, अगर हुआ है चेंज दोनों में से किसी भी एक साल में, तो आपने ये रिकंसिलिएशन देना है. We have seen several places this is missing. Also, what is seen missing is the right preferences and restriction attaching to the each class of shares. आपको देना पड़ता है मेरे कितने क्लास ऑफ शेयर्स हैं, क्या सबके क्या राइट्स है, इक्वल्स हैं कि नहीं है. मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल और कुछ है ही नहीं, इक्विटी शेयर है जो कि मैक्सिमम होती है हम लोगों की क्लाइंट्स की. तो उस केस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा that company is having only one class of shares and each are having an equal right. This is missing. You know why we are discussing this? Because in case something happens, first of all, of course, this is a negligence. Then when Schedule 3 is not complied with, auditor has not reported. Secondly, MCA, DC, or any stakeholder, if they catch hold of some financial statement, some issues are there, they will hold the auditor and ask that why these were not complied, and if they were not complied, how did you treat that in your auditor's report? So the final points we are discussing. Just a small question, is conversion of loan into shares in the case of default, ये cash है कि non cash? Conversions of loans into shares, cash है कि non cash?
हाँ जी, लोन, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग लोन, बोथ। सर बोथ कैसे होगा? आप इसको जब इक्विटी कैपिटल बताएंगे तो फुल्ली पेड अप इन कैश बताएंगे या अदर देन कैश बताएंगे? एक बताना होता है ना सर। रूपल जी का कहना है नॉन कैश। अदर देन कैश, सुनील जी का भी कहना है। Actually this is in cash because actually the company received the money as a loan, so this is in cash। और यहां पर it will be in cash। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेता हूं जो मेरे को भी पिछले दिनों में कम से कम 15-20 डिफरेंट अपने सीए भाइयों से क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे। मान लीजिए एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और 31 मार्च तक 1 लाख रुपए की सब्सक्राइब कैपिटल थी और 31 मार्च तक ना बैंक अकाउंट खुला ना पैसे आए, कंपनी में कोई एक्टिविटी नहीं। तो ये बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? ये 1 लाख रुपए का कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? नो कैश हैज कम। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी इसकी? ये मेरा क्वेश्चन। हाँ जी, there is no activity, subscribe capital has not been received। How to disclose that in the financial statements? डबल एंट्री क्या करेंगे? पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट और यू से शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट तो मनमीची तब होगा जब पैसे आएंगे। क्या करेंगे? पैसे आए नहीं, बैलेंस शीट बननी है, ऑडिट भी करना है आपने। हाँ जी, गेटिंग नो आंसर्स। चलिए मैं बताता हूँ। बैलेंस शीट में 2 आइटम आएंगे। फर्स्ट, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख, राइट? पेड अप कैपिटल 1 लाख। पेड अप कैपिटल वुड बी देयर 1 लाख in the liability side। in the asset side, amount receivable 1 lakh। आप मुझे पेड अप कैपिटल 1 लाख? yes, when a company is incorporated, the subscriber to the memorandum they have subscribed that they will pay this amount on the incorporation of the company। These shares have been allotted। you don't file pass 3 after receiving the money। यहां पर आप पेड अप कैपिटल 1 लाख दिखाएंगे और रिसीवेबल 1 लाख बताएंगे। और जितने भी लोग सुन रहे हैं एक्टिव में इस वक्त, प्लीज जितने और भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 आते हैं, तो उनको भी जरा गाइड कीजिएगा ये। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर इज अ सेक्शन 143(1) जो 6 क्वेश्चन बताता है। 6 questions which was there in 224(3) पहले in the 1956 Act। जो ये कहता था, अगर इन 6 क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई रिपोर्टेबल है तो रिपोर्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। उन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो ये कहता है, इन केस एनी शेयर कैपिटल इज सेट टू बी फुल्ली पेड, वेदर द fully paid up in cash, whether the cash has been received or not। so here the auditor will have to say, that though the paid up companies may incorporate and the paid up capital in cash is rupees 1 lakh, yet the amount is still not received in cash from the subscribers। Auditor की ड्यूटी है रिपोर्ट करना यहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट में। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस।
राइट। ये आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं कि आप कहीं कुछ निकालेंगे गूगल में, नहीं मिलेंगी ये चीजें भी नॉर्मल। प्लस प्लीज टेक केयर और डिसेमिनेट कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स को, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली अवर इंटेंशन इज टू improve the quality of the financial statement and audit report. Because really, if we want to really save the audits or tax audits, whatever it may be, we'll have to tell to the government. We have to tell to the government that yes, there is a quality, and what you are getting in the reports is really a good work by the auditors. We are doing at the council level. अभी रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया, क्योंकि हम जब भी एक्सटेंशन मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है यू आर नॉट, यू डोंट हैव टाइम टू डू द वर्क, यू ऑलवेज सीकिंग एक्सटेंशंस, आप यू आर ओवरबर्डन। और आपकी ऑडिट की क्वालिटी के अंदर भी वो कहते हैं जी सब कुछ नील नील करके आता है, चाहे वो परसेंटेज कम है, बट वो तो वही लेके आते हैं सामने। So what we did, because I am currently the chairman of the Taxation Audit Quality Review Board, so we had a one-to-one virtual meeting with the CBDT chairman. And as a chairman of this TAQRB, I requested him, sir, if any of your officers face any of the misreporting in the tax audit, kindly send those tax audits for the review which the institute in this TAQRB is doing. हमारे को उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि वी आर continuously improving the quality of the audits to make them relevant for the various stakeholders. Right? हम उनको ये कह रहे हैं कि यस, हम इस पे हमेशा क्वालिटी देते हैं, हम हमेशा, आपको अगर लगता है ना कोई गलत है, हमारे को भेजो ना, तो जिसने गलत किया है उसके ऊपर हम उसको रिव्यू करके एक्शन ले लेंगे। वरना वो कहते हैं ना हमको कुछ मिलता ही नहीं, हम कहते क्यों नहीं मिलता आपको, जो आप कहते हो ना नहीं मिलता, तो हमारे को रिपोर्ट्स दे दो जहां पे आपको लगता है आपको डिफरेंट है। सो वी आर नाउ आफ्टर देम, टेलिंग देम ओके वी आर रेडी टू हेल्प यू, व्हाट डू यू वांट, यू जस्ट टेल अस। सो हियर दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग, please don't hesitate in giving the facts and the reporting accordingly. Because audit is currently our monopoly. Only a chartered accountant in practice can do an audit, financial statements or tax audit. If we don't maintain and continuously improve this quality, various other stakeholders are pushing to reduce this work. So improve, charge appropriately. Rare है, monopoly है, सिर्फ हमारे पास है. Let us try and maintain this together. एक ये रिजर्व्स के अंदर आता है शेयर प्रीमियम अकाउंट, क्या है नॉमेनक्लेचर ठीक है? शेयर प्रीमियम रश्मि जी का क्वेश्चन है, in case of incorporation, share certificate is to be issued after receiving share capital amount in cash or can be issued within 2 months as required. Because on the incorporation, Rashmi ji, very good question. The moment the company is incorporated, the shares are allotted, you have to issue within 2 months. Now the amount becomes receivable, that's all. They are fully paid up shares. Right. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था, in the reserves there is a nomenclature, share premium. Is this nomenclature correct or not correct? If not correct, what should be the correct nomenclature? Yes, please. What should be the correct nomenclature? Yeah, Rubal, very right. Security premium. Security premium. शेयर प्रीमियम नहीं होता, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है. तो आप चेक कीजिएगा जब बैलेंस शीट्स आपकी कंपनीज की बन रही है, मैक्सिमम चेंज हो चुके होंगे, जहां नहीं हो आप चेंज कर लीजिए. बोरिंग्स के अंदर ये लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म. मेरा यहां पर एक क्वेश्चन है अगेन, ये जो डायरेक्टर से लोन आते हैं कंपनी को, ये शॉर्ट टर्म होते हैं कि लॉन्ग टर्म? डायरेक्टर से जो लोन आते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं कि लॉन्ग टर्म? हाँ जी. शॉर्ट टर्म. राजेश सर का कहना है शॉर्ट टर्म. एनीवन एल्स?
both. Shreyaji, on what basis you say loan agreement required to decide short or long term? Do you actually have, Parekh sir? Do you see the loan agreements? Damodarji is saying payable on demand, right? so when you never have, then how can you say? Then how you classify whether it is short term or long term, and then audit also. Damodarji का कहना बिल्कुल सही है. When it is payable on demand, normally they are payable on demand, and there are no agreements. Agreed. So it should always be short term. In case management decides it to be long term. Period outstanding नहीं, आशीष जी, not period outstanding. 10 साल से सेम लोन चल रहा है तो लॉन्ग टर्म नहीं हो जाएगा. लॉन्ग टर्म तब होता है when it is not repayable within next 12 months. So अगर मेरा एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट कहता है कि मैंने अगले 12 महीने तक पेमेंट नहीं करना, then only it will be long term. ऐसे केस में ऐसे ना हो कि वो करंट अकाउंट की तरह चल रहा है, फिर हम उसको लॉन्ग टर्म ले रहे हैं. नो, in that case always short term. If anything is being classified as long term, please have a documentation prepared with them. आप कौन से चार्जेस लेने हैं, जैसे भी लेने हैं वो लीजिए, but have those documentation where they are able to prove that it is long term, right? And we are safe to classify it as long term. Right? Directors we have discussed. CC limit, demand loans, always short term, always short term. एक क्वेश्चन ये भी है चलिए कि एक कंपनी के डायरेक्टर्स का कोई प्रॉपर्टी थी उनके पास, उस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर लैप ले लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंपनी ने ले लिया. इज इट सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन? इज इट सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन? लोन इज सिक्योर्ड. राजेश जी लेता हूं आपका क्वेश्चन. विकास जी, रूपल जी कहना है सिक्योर्ड, आशीष जी का भी कहना है सिक्योर्ड, एंड द आंसर इज अनसिक्योर्ड. सुभाष जी का भी कहना है सिक्योर्ड. इट इज अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड तब होता है जब कंपनी की कोई एसेट सिक्योर्ड हो, चार्ज क्रिएटेड हो. अगर कहीं पर भी कंपनी का डिफॉल्ट होगा तो कंपनी की कोई एसेट को कोई नुकसान नहीं होगा, डायरेक्टर की होगा. डायरेक्टर सेपरेट, कंपनी सेपरेट. हम बैंकिंग एंगल से ले रहे हैं, बैंकिंग के लिए सिक्योर्ड है, कंपनी के लिए अनसिक्योर्ड है. सचिन जी सही कह रहे हैं, अनसिक्योर्ड. सो प्लीज टेक केयर, इट वुड बी अनसिक्योर्ड. ये क्वेश्चन आपका क्या है सीसी से रिलेटेड राशि जी? कारों में कैश क्रेडिट से रिलेटेड कारों में क्या इश्यू आपका, बोलिए ना. Whether documents like stock statement or receivables submitted to bank should be afterwards checked by auditor. If there is any difference, how to deal with? राजेश जी, आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट. एंड नॉट ओनली कारो, there is a change in schedule 3 for this. There is a change in schedule 3 for this. If there is a variation in the stock statement submitted to the financial statement, to the banks and financial statements and the ledger accounts and the books of accounts, then the management will have to give the reconciliation thereof in the notes to the accounts. कारों में तो आ ही गया है, पर आप तो शेड्यूल 3 में भी चेंज आ गया इस साल मार्च 22 में देना आपने. If time permits, I'll discuss those also जो मार्च 22 में आ रहे हैं शेड्यूल 3 के अंदर, क्योंकि हमने ये शेड्यूल 3 के जो चेंजेस हैं ये we discussed earlier also for the 21 years balance sheet, right? चलते हैं आगे, देखते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं. एक हमने ये भी नोट किया कि जब मेरा टर्म लोन्स होते हैं तो हम उसके अमाउंट देते हैं, उसके नीचे जो रिक्वायरमेंट है वो गिव इट टर्म्स वो नहीं दे पाते. वो देनी चाहिए, which is requirement of
क्योंकि एमसीए से नोटिस आ जाते हैं. We have seen that why these terms are not given, and the requirement is as per our guidance note thereon. Period of maturity, number of installments due, interest rate, सब कुछ देना होता है, और बैलेंस शीट जो डिफॉल्ट होता है एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट देखना होता है, राइट. ये क्लासिफिकेशन मार्च 22 में चेंज हो जाएगी. अभी तक तो ये जा रही थी अदर करंट लायबिलिटीज में. मार्च 22 से दिस वुड बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग. ठीक है. अदर पेबल्स जो यहां पे था, अदर पेबल्स, दिस विल इंक्लूड ऑल दीज, राइट. लाइबिलिटीज में कुछ पॉइंट्स. एक तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी नहीं चाहिए अनलेस you have brought that private placement by the end of that year and 60 days had not elapsed, right? क्योंकि 60 दिन के अंदर पैसे आ गए तो आपको अलॉट करना मैंडेटरी है. अगर बहुत पुराने हैं तो ऑलरेडी इट हैज बिकम डिपॉजिट, यू हैव टू रिफंड इट. तो ये होना नहीं चाहिए. लोन फ्रॉम फ्रेंड्स कंपनीज के केस में नॉट अलाउड. Not allowed. I sometimes still get surprised when I receive certain questions कि भाई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दोस्त से लोन आया हुआ है, क्या करें. अभी भी आ रहे हैं बिकॉज मैनेजमेंट डजंट नो. वो तो ले लेते हैं, उनको लगता है मेरी घर की मेरी तो कंपनी है. एंड देन हम ढूंढते रहते हैं उसको 365 डेज एडवांस दिखाए. मैं कभी उसका काम क्या है, कभी वो तो प्रॉपर्टी डीलर है. और आपका काम क्या है, आपका काम है हमारा तो रेनकोट बेचने का. तो प्रॉपर्टी डीलर को रेनकोट किस लिए एडवांस चाहिए. 365 days issue. So loan from friends not allowed. Private limited company किसको allowed है, किसको नहीं, again a huge topic out there. Current non-current loans we have discussed. Advance from customers again check कीजिए advance from customers है कि नहीं है. चाहे वो within 365 है, चाहे अगर वो more than 365 days है तो वो डिपॉजिट बन गया. लेस देन 365 डेज है तब भी DPT3 जाना है, और उसकी ड्यू डेट होती है 30 जून एवरी ईयर. अभी रिसेंटली मेरे पास एक मित्र का फोन आया, कहते सर ये 30 जून की डेट को चेंज करवा दो ना, 30 जून तक तो बैलेंस शीट फाइनल नहीं होती. मैं कहा बात तो ठीक है, 30 जून तक तो बैलेंस शीट, आप तो आप कंपनी की बैलेंस शीट अभी मार्च की आज तक नहीं हुई तो DPT3 कैसे गया वो मुझे नहीं पता. मैं कहा बैंक स्टेटमेंट तो हो जाती है फाइनल, मेरे को तो इसमें जितना पैसा आया गया बस वही तो बताना है जो आउटस्टैंडिंग है. So we need to tell them because DPT3 touchwood, the rule says something, practice is something different. So as per the practice, there is no verification from the auditors. So we are safe. Management file करता है, there is a variation as compared to the DPT3 details, and as per the financial statements, we hold. Management will have to explain, let them explain. Right? ट्रेड पेबल्स की अब एजिंग आ गई है 21-22 से, एंड लॉट्स ऑफ ह्यू एंड क्राई इज देयर. शेड्यूल 3 में आपने देना है ट्रेड पेबल्स का लेस देन 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 years. राइट? जब 22 का देंगे तो 21 का भी देंगे. कितने मेरे क्रेडिटर्स पड़े हैं जो 3 साल से ऊपर हैं. अगर मान लीजिए 21 के अंदर आपके 4 करोड़ के थे और अब आपने उसको सारा राइट ऑफ कर दिया, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि या पेमेंट कर दिया कि ये क्या कहानी क्या है, 4 करोड़ से इन सब की डिटेल दे दो मेरे को. हाउ इट इज ट्रू एंड फेयर इफ इट इज पेबल मोर देन 3 years old? What did the auditor do? I hope in the 21 balance sheet you have taken care so that it doesn't appear here also. They have settled those in 21 itself, but not, please. And all these cases, 1 to 2 year, 2 to 3 year, and 3 years and more, please go and have you should have the actual confirmations. Otherwise, how you will say that the financial statements are true and fair? Huge responsibility cast upon the auditors, because it would be there in the financial statements.
शेड्यूल 3 नोट्स में रहेगा और आपने सर्टिफाई करना है। और वो कह रहे हैं कि मेरे तो सारे के सारे ट्रेड पेबल्स 3 साल से ऊपर हैं और 25 करोड़ के हैं। मेरी बैलेंस शीट की टर्नओवर, जो कंपनी के टर्नओवर है वो है 2 करोड़ और 25 करोड़ के क्रेडिटर्स चले आ रहे हैं मेरे, और हम कह रहे हैं एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, 25 करोड़ देने पर मैं दे नहीं रहा। Every stakeholder would ask this question from this financial statement here onwards. Please be very, very careful. एक तो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ये, how to report about arm's length, especially in case of small companies where there are several transactions with several related parties which may be business or otherwise. Rashmi ji, you know, related party transactions, there are two different things. One is AS 18, second is my section 188. Both are different, requirement of both are different. First of all, you should have the list of related party as per AS 18 separately, as per section 276 of the Companies Act separately. For section 2 subsection 76, you have to see if it is at arm's length. Then 188 itself is not applicable, right? But AS 18, the disclosure with the related parties are required to be given in the notes to account in the case of companies, whether it is small or SMC or non-SMC. The transactions and the closing balances, current year and previous year, you have to take it from the companies and then put it, right? Ashish ji keh rahe hain, along with term in case of personal guarantee of directors disclose. Personal guarantee of directors there, yes, you should disclose that too. And what other security is there? What other security is there? If there is no asset and it is a clean loan only on the guarantee of directors, then it doesn't become a secured loan. Rajesh Kandalwal ji ka question hai, advances received based on guarantees, based on agreements related to milestones, whether we have to treat as deemed deposit or advance from customer. Yes, advance are received which have to be as per milestones. There are advances received. DPT3 file hoga. These are not, I would say, these are exempt deposits, right? These would be exempt deposits, but yet you have to file DPT3 for the same. Company carrying for more than 365, then in that case, it could be that these are long-term projects. If it is long-term projects or for capital asset, then separate conditions are there. In fact, there are 3-4 things in this advances. Security deposit, no time period given. Normal advances, 365 days given. In case of proper advance against immovable property, then as per the agreement for the property, there also no term given. In case of long-term projects being capital assets, in that case also no time period given. So I have to see under which category it is. Damodarji, can we issue bonus shares out of accumulated profit every year to the balance available to safeguard from 220 of the Income Tax Act? दामोदर जी, पहले तो ये समझिए बोनस शेयर्स में शेयर होल्डर को मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। पॉइंट नंबर 1, आप ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को मैं शिफ्ट कर दूंगा टू द बोनस शेयर। बट जब मैं 222 ही पढ़ता हूं तो वो कहता है बुक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, तो वहां पर वो बोनस वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। राजेश जी का क्वेश्चन है, हाउ टू फिक्स ट्रांसफर प्राइस ऑफ सेल ऑफ गुड्स बिटवीन सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी? It is a normal transaction. How it is they are doing it between a related party and a non-related party, and how they can prove it at the arm's length. So what is the value addition which is being done by the holding or subsidiary whosoever is purchasing and further selling? So those all conditions have to be seen, and ultimately management will have to prove that it is at arm's length, right? So when the management will prove it, then the auditor will see it and then arrive at that yes, it is at arm's length. Otherwise not, right?
and there is no unless if in case it is in compliance with in compliance with section 188, whether the board resolution is required or not. If board resolution is there, then it has been done, then it is all within that limit now. Normally what is happening is they are always at arm's length. This section of arm's length transaction was already there in the earlier car also, or earlier report also, 1956 Act also. बोनस शेयर का सचिन जी कह रहे हैं, जहां तक मेरे को ख्याल है, जब भी हम एक्यूमुलेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेट प्रॉफिट की बात करते हैं, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट की बात है. शायद एक बार सेक्शन 222E एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा दामोदर जी और सचिन जी, क्योंकि मैंने अगर उसको रिजर्व्स को खत्म किया और उसको मैंने बोनस शेयर इशू कर दिए, इन दैट केस आई गिव एडवांस टू अ शेयर होल्डर मोर देन 10%. सो जो accumulated profit है, which is related to my profit and loss account, whether accumulated or not, because if I talk about section 222C, D, all talks about whether accumulated, whether capitalized or not. I have to recheck कि वो E में भी लिखा है कि नहीं लिखा, right? चलिए आगे चलिए. Property, plant and equipment, it has to be classified tangible, intangible. सॉफ्टवेयर आता है, इसमें जरा ध्यान रखिएगा. कैपिटल WIP, इंटेंजिबल. ये जो कैपिटल एडवांसेस है, दिस इज टू बी शोन एज कैपिटल वर्क इन प्रोसेस. चलो ये तो चेंज हो गया, मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा. नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब मैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप करता हूं, उसके अंदर इन्वेंट्रीज दिखाता हूं. जो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप्स हैं, जो मेरी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप्स हैं, इन दैट केस मैं इन्वेंट्रीज के आगे क्या लिखता हूं, क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्रीज, या मैं उसको हर एक को डिफरेंट डिटेल देता हूं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सब कुछ सेपरेट दिखाता हूं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिख के लिख देता हूं. प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कैसे दिखाता हूं इन्वेंटरीज ऑन द बैलेंस शीट साइड, क्लोजिंग स्टॉक या रॉ मटेरियल. हाँ, मैं बाइफिकेशन नहीं देता. प्लीज सी सर्टेन पॉइंट्स नोटेड इन proprietorship partnership LLP also. This classification is required, and this is as per AS2, this is as per ICDS2 both, and this is as per schedule 3. सब जगह same. And this stock in trade is only for the trading goods. अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग है तो ये डिटेल्स आती हैं. These are for manufacturing, this is for trading goods. Please take care. These are fine differences. We have to, as a chartered accountant, know about all these things, right? Finished goods should include all except trading goods, or goods in transit to separate disclose करना under revenue subhead. एक क्वेश्चन मैंने देखा था, what is the exact objective of impairing testing of PPE? राजेश जी का क्वेश्चन है. सर ऐसा है कि मेरे पास एसेट्स चले आ रहे हैं और वो मेरे यूज नहीं हो रहे हैं. They are already impaired, but still I am carrying it forward on its book value. So my standard AS28 that says that you have to impair, test the impairment, and then import the assets which are non-cash generating. We are cash generating, but they are not being generating cash, right? Riaz ji का एक क्वेश्चन है, I want to know whether financial statements can be audited at any cut-off date, for example, as on 31st December 21, auditor's report can be issued in that case. रियाज जी बिल्कुल इशू कर सकते हैं. उसके लिए हमारा एक स्टैंडर्ड है फॉर द इंटरिम ऑडिट्स. एंड अगर मैं स्पेशल पर्पस रिपोर्ट्स की बात करूं तो हमारा ऐसे 800 सीरीज है which talks about these audit reports formats. So of course we can do those. These are specific purpose audit reports, we can do that, right? एक
क्वेश्चन है अपना पंकज मिनोचा जी का, पंकज भाई का, वेदर एन इंडियन प्राइवेट कंपनी, Indian private limited holding company can take loan from its wholly owned subsidiary outside India. Also, whether the same Indian holding company can raise invoice on foreign subsidiary for operations related services provided from India, as there is no staff at foreign subsidiary location, and all operations managed by Indian companies, sales accounts, and team from India. Everything is possible. First of all, for the operations activity, you have to take care that it is at arm's length. आपको टीपी के प्रोविजंस लगेंगे, टीपी ऑडिट होगा, टीपी की स्टडी होगी, डिपेंड करता है। टीपी ऑडिट तो आपके 1 रुपए के ट्रांजैक्शन पे भी होगा, टीपी स्टडी तब होगी अगर आपके 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन है। और जहां तक लोन इंडिया से बाहर से लेने की बात है, तो यू कैन टेक एज पर द ईसीबी गाइडलाइंस। सो फेमा की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू टेक एज पर द ईसीबी गाइडलाइंस, यू कैन टेक दैट, राइट। एसेट्स के केस में एक ये भी अभी क्वेश्चंस वापस मेरे पास आने चालू हो गए कि एक हमारी प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ रेंट पे दे रखी है, हमने उसको अभी भी फिक्स्ड एसेट्स में दिखा रखा है। इन केस द प्रॉपर्टी इज केप्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एप्रिसिएशन और फॉर रेंट, दैट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। AS 10 एप्लीकेबल नहीं आएगा, इसके अंदर मेरा AS 11 आएगा, AS 13 आएगा, AS 13 आएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा बिल्डिंग पोर्शन पे, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन जो भी कुछ दिनों पहले मेरे पास आया, द बेनिफिट फ्रेंड्स, and I really thank each and everyone for this, because when you ask a question and I study, so I share that again with all of you. क्वेश्चन बड़ा अच्छा ये आया कि मैंने इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन रेंटेड प्रॉपर्टी पे तो मिलेगा नहीं, तो मैं उसको कैसे करूं? मैं डेप्रिसिएशन चार्ट के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम करूं और उसके बाद कंप्यूटेशन में ऐड बैक कर दूं। मैं कहा कि अगर आप 3CD के अंदर, क्योंकि टैक्स ऑडिट था, अगर 3CD के अंदर कर रहा हूं तो मेरा जो क्लॉज 18 है, क्लॉज 18 में मैं कहता हूं मेरा डेप्रिसिएशन इस तरह से ही अलाउबल है, आई एम सर्टिफाइंग इट टू बी ट्रू एंड करेक्ट, व्हिच इज रॉन्ग, व्हिच इज रॉन्ग। 3CD ट्रू एंड करेक्ट सीए बोलता है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी which is on rent and which is not used for business, in that case depreciation is not allowable, please. So income tax में नहीं मिलेगा, लेकिन बुक्स में करना पड़ता है। So please take care, please take care. Inventories, please take care. और ये हमारा 2-3 इश्यूज बड़े ज्यादा हैं, जिसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज इन्वेंट्रीज। आस्क अ क्वेश्चन, इतनी इन्वेंट्रीज क्यों हैं? क्या इनके ट्रेड में ऐसे ही होता है कि 2 दिन का मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, मेरी 50 करोड़ की टर्नओवर है, 40 करोड़ का स्टॉक है, क्या जरूरत है 40 करोड़ के स्टॉक की? हर साल इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, गोडाउन भी ले रहा हूं मैं, ये गोडाउन इतना है नहीं जिसमें उतनी इन्वेंट्री आ जाए, पर मैं इन्वेंट्री दिखा रहा हूं। जिस दिन वो एनपीए होता है, इन्वेंट्री 0 हो जाती है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस इन्वेंट्रीज केस। आप सब लोग अपने अपने क्लाइंट्स को जानते हैं कहां पर क्या इशू है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स is inventories. Have adequate documentation, have adequate evidences, so that client as well as the auditor are able to evidence that whatever they are saying is true and fair. Otherwise, both will be having a problem. When we are issuing an audit report, there is a tremendous responsibility casted upon us, please. We are doing a job which the government requires us to do it. We are just representing the government to do the audit. Please understand this. We have been given this responsibility by the government under various laws. It is not only because we are choosing the assessee तो हम assessee के हो गए, नहीं, हम माइंड में रखें कि हम जब साइन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ भी हमारा एक रोल है
अदरवाइज वो कहेंगे यू आर नॉट डूइंग अप्रोप्रिएटली, तो सारे स्टेक होल्डर्स ऑडिटर्स के पीछे पड़ जाते हैं. सो प्लीज टेक केयर, स्टार्ट थिंकिंग अ बिट ऑन दीज लाइंस. लोन चल रहा है और कैश इन हैंड खूब है, कैश इन हैंड है फिर भी कैश निकाले जा रहे हैं. सो व्हाट डिड द ऑडिटर आस्क? क्या डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई कैश पड़ा 50 लाख फिर भी आप 50,000 निकाल रहे हो, क्यों? पूछा आपने? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, whatever it may be. Audit means audit. We have to have the documentation why there is a huge cash. What is the requirement? Have it, get it signed from the client. What are the reasons? Loans without interest in the case of companies, you cannot give. Section 186 of Section 7. You cannot give. Not allowed. Please take care. Please take care. अगर है तो आप कारों के अंदर लोन गिवन विदाउट इंटरेस्ट 186 की नॉन कंप्लायंस देखेंगे. डेटर्स की भी एजिंग चाहिए. अगेन लेस देन 6 months, 6 months to 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 year. ये इस साल से ही है, ये इस साल से है. 22 की भी देंगे, 21 की भी देंगे. और फिर आप देखते रहेंगे कि ये 3 साल से ऊपर बढ़ता ही जा रहा अमाउंट, तो ये पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे. और हम क्या उसकी प्रोविजनिंग करते हैं फॉर द बैड डेट? प्रोविजनिंग करते नहीं है, सीधा राइट ऑफ कर देते हैं. डाउटफुल है तो प्रोविजन भी तो करोगे. So now this aging, this transparency in the financial statements is there. Do this working even for proprietorship, partnership. Companies के लिए mandatory है, I agree, but do it even for the proprietorship, partnership, so that we can give the audit quality. Miscellaneous expenditure अब तो बहुत कम हो गया, touch wood, with so much of discussions over various forums by the chartered accountants. क्योंकि 35D जो कंपनी कॉर्पोरेट होती है, तो 35D जो होता है मेरा, वो 1/5 मेरे को एक्सपेंडिचर अलाउ करता है. But as per AS 28, I cannot recognize this. 26, I cannot recognize this in my books of accounts. So in the first year, I write off the whole of the miscellaneous expenditure, which is related to the incorporation of the company. In income tax, 35D, I keep on claiming 1/5 in the 5 years. मैं 1/5 इस साल में नहीं करता. अगर किसी की क्लाइंट के बुक्स में अभी भी है तो उनको बोल के राइट ऑफ पूरा का पूरा करवा दिया कीजिए विद इन फर्स्ट ईयर. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, इसको छोड़ देता हूं. अदर इनकम के अंदर ये सब अलग अलग दिखाना होता है, राइट. एक्सपेंसेस के अंदर ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट लॉस कंपनीज के केस के अंदर ये सारे दिखाने हैं, राइट. बाकी जो जो भी एप्लीकेबल है, बट यहां पर हम कई बार ऐड कर जाते हैं ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड सेपरेट. यहां पर मैंने बहुत जगह शिफ्टिंग देखी. आई हैव सीन इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दे राइट परचेजेस. Wrong. This is only for the manufacturing. एक बार हम मतलब कि कंपनी दोनों काम कर रही थी, तो दोनों चला आ रहा था, और या फिर they were earlier manufacturing, now trading, सब कुछ अभी भी इसी में दिखाई चले आ रहे हैं. So I have to be careful about this, right? And interest expenses, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो मेरा जीएसटी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इनकम टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो ये मेरा किस हेड में आता है? मेरा कौन से हेड के अंदर दिखाते हैं हम जो मेरा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन जीएसटी? नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ होता नहीं शेड्यूल 3 में सर. और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ऐसे कुछ नहीं होता. मैन्युफैक्चर के अंदर आपको बताना पड़ेगा किस हेड का. नहीं, आप अगर कंपनीज की बात करेंगे तो पावर सब अदर्स में आ जाएगा. मेरा फ्यूल एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा. विकास ये कहना है कि इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स जीएसटी वुड बी अदर एक्सपेंस. just to bring to your knowledge, no, it would be a finance cost. Please take care. Yeah, finance cost. Ashish ji, you are right. रियाज जी का क्वेश्चन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंटरेस्ट ऑन अदर फाइनेंस चार्जेस. वेरी राइट राजेश जी. रियाज जी का एक क्वेश्चन है, प्राइवेट लिमिटेड परचेज लैपटॉप एंड कंप्यूटर एंड रेंटेड आउट, शुड शो एज इन्वेंटरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड चार्ज एज डेप्रिसिएशन. नाउ अगर
मेरे ये जो एसेट्स हैं ये मेरा किराए पे देने के लिए ही हैं, then it becomes my either stock in trade if I'm selling also, और टाइम पे मैं उसको रेंट आउट भी कर रहा हूँ। दोनों मिक्सचर है, बेचता भी करता हूँ स्टॉक इन ट्रेड, एंड इफ अदरवाइज यू कैन टेक इट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिकॉज यू आर अर्निंग revenue out of there, and they being not my investment property, you will have to depreciate it over the years. ठीक है रियाज? या बिल्कुल सही। सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया, इंटरेस्ट ऑन टैक्स। अदर एक्सपेंसेस में ये एक आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं नोट्स के अंदर अदर एक्सपेंसेस देता हूं तो वहां पर इन केस ऑफ कंपनीज ये मेरे को सब सेपरेट दिखाने, अभी कह रहे थे ना पावर और फ्यूल यहाँ पे आएगा। मेरा जीपी जो है दैट डज नॉट कम आउट फ्रॉम ए शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमारा कहीं डिस्कशन हो रहा था इंस्टीट्यूट के अंदर, तो बोला जी उसमें वर्डिंग थी एज डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, मैंने कहा लाइन आइटम में आता ही नहीं है, यू कैन नॉट डिराइव फ्रॉम द लाइन आइटम, यू हैव टू गिव द कंप्यूटेशन दे रहा हूं, क्योंकि अब रेशियोज भी देनी है ना मेरे को, तो गाइडेंस नोट में वो चीज चेंज करवाई। नाउ यहां पर एक इशू आ जाता है, आई कैन नॉट क्लब दीज टू, रिपेयर्स एंड बिल्डिंग मशीनरी सेपरेट करना पड़ेगा, चाहे मेरा 100 रुपए का हो, चाहे इंश्योरेंस मेरी 1000 रुपए की है, आई कैन नॉट मर्ज देम, ये सब सेपरेट दिखाना है। एमसी ऐसे क्वेश्चन करता है ये तो सेपरेट ही दिखाने थे आपको, क्यों नहीं दिखाया? Any expenditure which exceeds 10% or 1% of the revenue is separate दिखाना। नोट्स टू अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पॉइंट छोड़ देता हूं, ये मैं डिस्क्लोजर्स एसएमसी नॉन एसएमसी अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अगर आपकी एसएमसी है नॉन एसएमसी है, in that case there is a specific paragraph, if you are an SMC and you are availing of the disclosure benefits, then in that case you'll have to mention a specific paragraph in your financial statements. In the next 2 slides I'll disclose share that what is those. AS1 सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज जो मेरे को एप्लीकेबल है, जो मटेरियल है उनकी मेरे को अकाउंटिंग पॉलिसी देनी है। जैसे बोरिंग कॉस्ट है, मैंने डायरेक्टर से लोन ले रखा है ना, तो मेरे को AS 16 के हिसाब से प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनी सबके अंदर मेरे को उसका डिस्क्लोजर देना है, जो उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, राइट। इवन ICDS भी कहता है कि आपको वो डिस्क्लोजर देना है, सो देना है मेरे को। ये मैंने मिसिंग देखा। AS की कंप्लायंस होनी चाहिए, अगर नहीं होगा तो जैसे मैंने कहा कि कंपनीज के केस के अंदर AS 15 मेरे को ग्रेचुटी का प्रोविजन नहीं किया या ग्रेचुटी का एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कराया, तो ऑडिट रिपोर्ट में तो जाएगा ही जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आएगा कंपनीज के केस के अंदर। नहीं करने पे मैनेजमेंट को पेनल्टी है, डिस्क्लोज द डेविएशन, रीजन फॉर द डेविएशन, फाइनेंशियल इफेक्ट, तीनों देने पड़ेंगे। ये AS एप्लीकेबिलिटी ये मार्च 22 के लिए। SMC की लिमिट अब मेरी टर्नओवर 50 करोड़ से बढ़ा के 250 करोड़ कर दी, बोरिंग 10 करोड़ से 50 करोड़, यानी 250 करोड़ से ऊपर अदर देन SMC, 250 करोड़ से नीचे SMC फॉर दिस मार्च 22 कंपनीज के केस में, राइट। SMC का डिस्क्लोजर की बात करूं मैं तो मार्च 21 तक तो ये वर्डिंग आनी चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में, और मार्च 22 ऑनवर्ड्स बैलेंस शीट ये वर्डिंग आ जाएगी। The company is a small and medium sized company as defined company accounting standard notified, क्योंकि मेरी मैक्सिमम मैं कहूंगा अब 250 करोड़ है टर्नओवर, 50 करोड़ की बोरिंग, SMC रहेगी हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स, तो ये वर्डिंग मेरे नोट्स टू अकाउंट्स में आने चाहिए, मैंडेटरी है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्लीज टेक केयर, राइट। फॉर नॉन कंपनीज ये पिछले साल से ही हो गया था, 4 लेवल हो गए। लेवल 4 इज लेस देन 10 करोड़, लेवल 3 इज अप 10 to 50, 250 करोड़ तक लेवल 2, और 250 करोड़ से ऊपर लेवल 1 विच इज एज गुड एज नॉन SMC। ये SMC मेरे हो गए हैं लेवल 2, 3 and 4।
बोरिंग की लिमिट्स भी इस हिसाब से चेंज हो गई है, मार्च 21 में भी हो गई थी, 22 में। और इसके अंदर मेरे को हुआ क्या बेनिफिट्स अगर मैं कहूँ, ये जो मेरे को प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एलएलपी के अंदर डिस्क्लोजर देना, क्योंकि मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स जो होंगे वो मेरे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे, तो उसका ये लेवल देना, ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर लूंगा, तो आप ये ध्यान करके ये अपने नोट्स में डलवाइएगा, क्लाइंट्स के नोट्स में, राइट। एएस की एप्लीकेबिलिटी, ये कंपनीज, ये नॉन कंपनीज, लेवल 1 2 3 4, या एसएमसी नॉन एसएमसी। अगर आप देखेंगे एसएमसी में कैश फ्लो मेरा एप्लीकेबल होता है कंपनी एक्ट के हिसाब से, बाकी सारे यस है। यस, एम्प्लॉय बेनिफिट पार्टली डिस्क्लोजर से रिलेटेड। अगर मैं नॉन कंपनीज में देखूं तो मेरा देखो कैश फ्लो सिर्फ लेवल 1 पे ही है, तो यानी पहले 50 करोड़ तक मेरे को करना पड़ रहा था, अब 50 करोड़ नहीं 250 करोड़ हो गया, तो कैश फ्लो अब नहीं बनेगा 21 ऑनवर्ड्स। Then if I talk about property, plant and equipment, foreign exchange, ये छोटे छोटे जो मेरे ऑप्शनल थे वो हटा दिए, but major changes in my what I feel so AS18 related party, where this up to 50 crores मेरे को proprietorship partnership में related party की declare नहीं देनी, related party की नहीं देनी up to 50 crores। वैसे तो हो सकता है मैक्सिमम पहले से ही ना देते हो, बट देना मैंडेटरी था हर एक, बट 50 crores and above of related party की डिटेल देनी है 21 onwards, right? Related party, different standards, different provisions, पता लगना चाहिए, एक दूसरे की डेफिनेशन हम मिक्स ना करें, एक दूसरे की डेफिनेशन हम मिक्स ना करें। देखो सर, अब हमारे पास टाइम है नहीं, 3 मिनट ही बचे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम क्वेश्चंस ही लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हमारे नोट्स और शेड्यूल 3 और ऑडिट बहुत सारा रह गया, वो आज कंप्लीट हो नहीं सकता। द ओनली थिंग आई विल लाइक टू जस्ट शेयर विद यू अगेन व्हाट शशांक भाई आल्सो सेड, that yes, you can sign up here, it is all free, and then after login you can ask a question on any category you want, and the reply to that will come on an email ID. You can existing questions को भी आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछना चाहें, यहाँ पे अपनी वर्डिंग जब लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी आ जाएगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियोस हैं, नोटिफिकेशंस हैं। I'll share this all this on this also, you can just go category wise आप जा सकते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं who are answering this, and इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो आंसर कर रहे हैं वो मेरी टीम वाले हैं, none of them, anyone, you can become an expert if you are ready to answer free of cost, but answer properly, because it is for those experts who are ready to help our other professionals. The ultimate aim is to improve the quality and everyone should benefit. किसी को कई बार होता नहीं पता लगता कि मैं किससे पूछूं, कहां पूछूं, कब पूछूं। Maximum questions यहाँ पर आप 32,000 answers already given by nearly 120 experts in last 3 years. It is continuing. You can anytime try this, and of course I will also be uploading this presentation on this website, and you can download this free mobile app. Experts panel का भी मोबाइल ऐप है, एक्सपर्ट्स पैनल के नाम से ही। आप ये अगर डाउनलोड करेंगे तो जितने भी आपके नोटिफिकेशन सिंस 2007 प्लस रेडी टू यूज चार्ट सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। And I really thank the East Delhi Study Circle, Shashank ji, Sandeep ji, Durga Das ji, and all my friends for giving me an opportunity to share my views. I know discuss करना चाहें तो इतने points हैं कि हम बहुत सारे कर सकते हैं, but I really enjoyed sharing each and every one. मैंने कहाँ शेयर करूंगा, मैंने ये भी आपको एक बार बता दिया कि मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, राइट? कोई एक अगर क्वेश्चन है तो थैंक यू सो मच। चेक करते हैं कुछ क्वेरीज में Q&A सेक्शन में सर। नहीं वो सर रियाज सर का थैंक्स है, उनको भी थैंक्स, और बारिक सर कहना कब दोबारा मिल रहे हैं, जब आदेश करेंगे संदीप भाई, शशांक जी, आई विल बी देयर, ऑलवेज देयर। नो आपने ऑलरेडी दे दिया डिटेल की कहाँ से डाउनलोड करनी है, क्वेरीज भी कहाँ से अपलोड करनी है।
I think no other questions we have. एक क्वेश्चन ये आया है, Vikas Sharmaji, most of the people said that we can remove schedule 3. हाँ, अगर आपका शेड्यूल 3 में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों नील है, देयर इज नो मूवमेंट, देन यू कैन रिमूव दैट आइटम. ये मैं क्यों बता रहा हूं कि अभी रिसेंटली आया था हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी, हमने डिस्कसिंग दिस. तो शुरू से ये चल रहा था कि अगर आपका excess of information is also not welcome, but restriction of information is also not welcome. So when it came there, so I don't know how it happened that when the new guidance note was coming, they mentioned there nahi sara dene. मैं कहा sir, this is not possible. So I took that item into the council and told them no sir, previous year current year अगर दोनों नील है तो पूरा का पूरा आपको शेड्यूल देने की जरूरत नहीं है. So it continues, पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है. जो नया गाइडेंस नोट आया, एवरीवन. थैंक यू विकास. I think अब हो गया सर, अब कोई क्वेरी नहीं है. Thank you sir, thank you so much for a wonderful session. It was very resourceful, knowledgeable, और I thoroughly enjoy it. I hope members ने भी काफी enjoy किया हुआ है. And I would like to thank all participants as well. उन्होंने काफी interactive रखा और काफी सारी queries की. Before moving further, I would like to request our ex-chairman NIRC Sasank ji to conclude the session. Over to you, Sasank ji. Thank you so much, Sandeep ji, for sharing this opportunity. प्रमोद सर के लिए तो मैं कहते हैं ना, जितना कहते हैं हम उतना कम हो जाता है हर बार, और फिर हमें कुछ नए शब्द ढूंढने पड़ते हैं. बट सर ने अपना गला खराब होने के बावजूद ना काफी, मतलब बेचारे हिचकिचाते रहे, खिचकिच करते रहे. बट मुझे बड़ा दुख भी हो रहा था कि मैं अपने सीसीएम मेंबर और हमारे प्यारे से प्रमोद जी से इतनी मेहनत करवा रहा हूँ. बट उनका स्पिरिट देख के ना दोबारा एनर्जी भी आ जाती है कहीं ना कहीं, कि सर आज भी इतना कर रहे हैं तो हमें भी अपना जब जब मौका मिले कर देना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं. और आज मेंबर्स का भी मैं पूरा धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने फुली पार्टिसिपेट किया प्रमोद सर के साथ, और प्रमोद सर ने एंगेज भी रखा. और थैंक यू अगेन टू ऑल ऑफ यू. स्पेशल थैंक्स टू संदीप सर, जो हमेशा ही सबके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं. और स्टडी सर्कल को धीरे धीरे, सर कहते हैं ना, एक स्टडी सर्कल्स जिस तरीके से बनाए गए थे, आज भी उनके ऑब्जेक्टिव्स, हम एक कहते हैं ना क्लोज नेट एक परिवार की तरह आगे बढ़ते रहते हैं. और एक जना जो थामता है उसकी मशाल को, जैसे संदीप सर बहुत एक्टिव रहते हैं और धीरे धीरे सेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं. सो अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. स्पेशल थैंक्स टू प्रमोद सर फॉर योर वंडरफुल डेलिब्रेशन. No, thanks to each and everyone for making it very interactive. I really enjoyed and I learned a few things. And आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद. Anytime sir, always. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you so much. आप सबका धन्यवाद. Thank you. ठीक है संदीप जी. ओके. Thank you everyone.